हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज व्यास पूजा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज बहुत ही शुभ तिथि है, अन्नदा एकादशी के उत्सव में हम लोग श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा में उनका महिमा कीर्तन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो महाराज को किसी इंट्रोडक्शन की परिचय की आवश्यकता नहीं है। महाराज वन ऑफ द वरिष्ठ, जो श्रील प्रभुपाद के सबसे वरिष्ठ और प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने अतुलनीय तरीके से श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में सेवा की है। चाहे वो मंदिर बनाना हो या बड़े बड़े लोगों से संपर्क रख के इस्कॉन की जो है प्रतिष्ठा को स्थापना करना हो या बड़े बड़े केसेस को हैंडल करना हो, तो महाराज ने बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा दी है। तो यहाँ पर हम उनके ग्लोरिफिकेशन महिमा कीर्तन सुनेंगे अलग अलग भक्तों से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महाराज के जीवन पर एक बायोग्राफी बनी है, उसको देखकर। हरे कृष्ण। Hare Krishna. This is a short presentation on the temples overseen by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. By the mercy of Srila Prabhupada, today Hare Krishna has become a household word. Within the world, as we move towards Bharat, there exists a pastime place of Lord Shri Krishna known as Indraprastha, which is now known as Delhi. He mercifully established Dharma. Following in his footsteps, Srila Prabhupada arrived in Delhi in the year 1960. Srila Prabhupada stayed in Sri Sri Radha Vallabh Temple, located in Chippiwada, New Delhi from 1960 to 1965. In those days, he would travel from Vrindavan to Delhi to print and distribute his Back to Godhead magazine, tolerating heat strokes, indifference of people towards spirituality, financial crisis, callous government officials, non-cooperative and self-absorbed godbrothers, and still, without getting discouraged, Srila Prabhupada continued his preaching work in Delhi. Srila Prabhupada wanted Chippiwada temple to be acquired by ISKCON. It was a struggle to get the property in ISKCON's name. But finally, ISKCON got the property in 2012, and in 2019, a beautifully renovated temple with Sri Sri Radha Vallabh as deities were installed and now blessing the devotees and visitors there. Srila Prabhupada once mentioned that Delhi is most important place in the whole of Asia. Therefore, he had deep spiritual desire to have many temples in Delhi. After effectively sowing the seed of pure bhakti in the Western world, Srila Prabhupada came back to Delhi on 24th July 1967, where thousands of people thronged to welcome him. In November 1971, preaching started in various parts of Delhi, where more than 30,000 people would participate in each program. But preaching grew rapidly in Delhi. First preaching center was in Anand Niketan, where the deities of Sri Sri Radha Parthasarthi, which were brought from Jaipur by Her Grace Yamuna Mataji, were installed. After 10 years of immense hard work by His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, ISKCON got the land for the temple. It was a hilly place in South Delhi, which on official papers was mentioned as Govardhan Hill, was allocated to ISKCON, on which a huge, gorgeous temple got constructed and was inaugurated on 5th of April 1998 on the occasion of Ram Navami. This project is also known as the Glory of India project. The inauguration was done by Sri Atal Bihari Vajpayee, who was interim Prime Minister of India at that time, and the function was attended by many other political leaders and dignitaries. This temple has remarkable edutaining Vedic Expo, which is a light and sound show showing Bhagavad Gita and Vedic wisdom in a very animated way, and has been attended by 1.8 million visitors until now. Recently, world's largest Bhagavad Gita was placed in the Temple Museum, which was inaugurated by Sri Narendra Modi, the glorious Prime Minister of India. ISKCON Delhi is visited by 20,000 visitors every day, and on weekends and festivals, the number rises to 50,000.
Throughout the week, array of school buses, groups of dignitaries and tourists from all across the globe arrive in ISKCON Delhi. Many foreign delegates used to visit the ISKCON Delhi temple, and one of them is Sir Peter John Cosgrove, who was former Governor General of Australia. And through online preaching, we are reaching millions of people. Now on YouTube channel My Ashray, we have 2 million subscribers, and through ISKCON Delhi Facebook page, we have reached 2.2 million people. In the year 2023, ISKCON Delhi Temple completed 25 years of dedicated service, and Sri Sri Radha Parthasarthi, which were installed by Srila Prabhupada in 1973, completed 50 years of showering grace upon Delhi, for which there was 5-day celebration and was attended by 50,000 devotees and visitors. Due to Srila Prabhupada's austerities and grace followed by preaching done under the leadership of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, today ISKCON Delhi has expanded with its 17 centers in Delhi NCR. And here goes the list. ISKCON Punjabi Bagh, ISKCON Faridabad, ISKCON Rohini, ISKCON Ghaziabad, ISKCON Dwarka, ISKCON Gurugram Badshapur, ISKCON Gurugram Sector 45, ISKCON Noida, ISKCON Sahibabad, ISKCON Mahipalpur, ISKCON Wave City, ISKCON Panchsheel, ISKCON Bahadurgarh, ISKCON Chhatarpur, ISKCON Chipiwada, ISKCON GK3, ISKCON East Delhi. Around Delhi NCR, total number of congregation devotees has reached the mark of 35,000. Youth devotees 15,000. 100 Namhatta preaching centers along with 80 basins. Annually, there are 7 major Rath Yatras, more than 1,000 Harinams and Nagar Sankirtans, and around 100 festivals. ISKCON Delhi NCR has distributed 1.5 crore Bhagavad Gitas and approximately 4.75 crores of other books by Srila Prabhupada. During COVID pandemic, ISKCON Delhi NCR distributed 7 crore plates of prasadam during phase 1, phase 2 and phase 3. It was widely recognized, and ISKCON set a world record of distributing highest number of plates during the time of emergency. First time drone was used for the distribution of prasadam. ISKCON Delhi arranged for 1200 beds under COVID care center where Ayurvedic medicines, healthy prasadam and everyday kirtans cured more than 15,000 patients with no casualty. And Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India, specially glorified this service. There is his part of speech. ISKCON ने समाज का संबल बनने का काम कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहा। All media channels, which includes social media, print media and electronic media, covered the whole service. On 2nd September 2021, Government of India under the leadership of Narendra Modi ji released a coin on the occasion of 125th birth anniversary of His Divine Grace, Srila Prabhupada, to honor his incomparable contribution to Sanatana Dharma, spreading it all across the globe. On 9th November 2022, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, inaugurated the extended campus of BGIS, which stands for Bhaktivedanta Gurukul and International School. Now we move to Kurukshetra. Another place which was very vital, especially for the preaching of the glories of Bhagavad Gita, is Kurukshetra, the very place where Lord Krishna spoke Srimad Bhagavad Gita. As per Vishnu Puran, Kurukshetram Satsangamam Yatra Dharma Sukhanitam. In Kurukshetra, the holy land where truth is embraced and righteousness prevails, every spot is like a sacred bathing place during a festival among all pilgrimage sites. Srila Prabhupada envisioned preaching and a palatial temple in Kurukshetra in the year 1975. Following in his footsteps, Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, with the help of his disciples, struggled for around 30 years to acquire a piece of land. Srila Prabhupada used to say, "We are trying to build an institution in Kurukshetra to invite people all over the world for learning Bhagavad Gita." Finally, Krishna Arjun Temple, which will have Vedic museum displaying all 18 days of Mahabharat war and graphical depiction of the message of the Bhagavad Gita, is getting constructed at Kurukshetra. Now let's move to Juhu. ISKCON Juhu was a very challenging project, which Srila Prabhupada very successfully completed in the service of Sri Sri Radha Rasbihari.
being the zonal secretary of the Juhu project, along with His Holiness Radhanath Swami Maharaj, His Grace Bhima Prabhu and His Grace Devaki Nandan Prabhu as zonal secretaries. Today, ISKCON Juhu is flourishing, bringing devotional service in the lives of so many residents of Mumbai. Mumbai preaching extended to Mira Road, where a beautiful temple got constructed, namely Sri Sri Radha Giridhari Temple. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj and His Grace Bhima Prabhu as zonal secretary. Also, there is a temple about to get completed and inaugurated in Kharghar, Navi Mumbai. It is going to be a model temple for implementing Devi Varnashram. Altogether, these temples have 12,000 devotees in congregation, 7,000 youths, 20 centers. They also distributed 500,000 of books last year, in the year 2022. Now let's move to ISKCON Pune NVCC project. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, in association with His Holiness Radhanath Swami Maharaj, who is co-GBC for Pune, with the assistance of many dedicated devotees, constructed a beautiful, massive temple for Sri Sri Radha Vrindavan Chandra. One devotee, namely Mr. Banerjee, donated entire temple of Lord Balaji and deities of Lord Balaji worth 1.2 crore by selling his own home. This temple is part of ISKCON Pune and is located in its vicinity. Mr. Pranab Mukherjee, President of India at that time, came to inaugurate the temple. ISKCON Pune has currently around 7,000 devotees in congregation, 500 devotees in youth forum, with 10 centers and 13 bases. Due to everyday Harinam party, they do 700 Harinams and Nagar Sankirtans every year. Now let's move to East Africa. Preaching in East Africa is expanding in aforementioned regions. Many local devotees are connecting with ISKCON, which includes Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda, Rwanda and Nairobi. The size of congregation in East Africa is 1,500. Around 400 devotees are connected to youth preaching, with 5 temples and 9 centers. There are 2 farmhouses with 110 cows and with more than 20 acres of land for farming. In the year 2022 and 23, here the devotees distributed more than 46,000 books. Srila Prabhupada faced so many difficulties in preaching Krishna consciousness, yet Srila Prabhupada successfully infused devotional service in the hearts of millions of people. It is Srila Prabhupada's blessings and potency that preaching is expanding in the aforementioned regions. Hare Krishna. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की। सॉरी, मैं अपने जीवन में जब देखता हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके, कभी कभी भूतकाल में जाके, मुझे विश्वास नहीं होता है कि कितना बड़ा सौभाग्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है कि प्रभुपाद के ऐसे महान शिष्यों का दर्शन करने का मौका मिला, उनका संग प्राप्त करने का मौका मिला, उनकी सेवा करने का मौका मिला। हमारी तो व्यक्तिगत रूप में ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की ही कृपा है। कभी कभी किसी भक्त को लगता है कि काश हम प्रभुपाद के समय होते, किसी को लगता है काश हम चैतन्य महाप्रभु के समय होते। कृष्ण के समय का तो कोई सोचता नहीं है। लेकिन ये दो सेंटेंसेस हमने जरूर सुने भक्तों से, प्रभु जी काश हम चैतन्य महाप्रभु के समय होते, काश हम श्रील प्रभुपाद। कुछ सोचते हैं काश हम गुरु महाराज के अर्ली डेज में होते, गुरु महाराज के साथ होते। ये भावना अच्छी है। ऐसे गुरु महाराज एक बार श्रील प्रभुपाद को बोल लेते हैं, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि
काश मैं आपके साथ उस समय होता जब आप अकेले स्ट्रगल कर रहे थे। प्रभुपाद गुरु महाराज कहते हैं कि मैं कभी भी अकेला नहीं था, गुरु और कृष्ण हमेशा मेरे साथ थे। तो ये आशा होना अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें वाकई में हमारी कोई योग्यता नहीं, स्पेशली मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन किस प्रकार से भगवान आयोजन करते हैं, गुरु आयोजन करते हैं कि किस भक्त को कैसे आगे लेकर के जाना है। और हम लोग जिस समय हैं, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद के समय बहुत सारे लोग संपर्क में आए, लेकिन सब भक्त नहीं बन पाए। श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद एक ऐसा कठिन दौर आया जिसमें इस्कॉन में जुड़ना तो दूर, इस्कॉन से छोड़ कर लोग जा रहे थे, राइट। बहुत सारे भक्त लोग छोड़ के गए, बहुत सारे लीडर्स छोड़ के गए। लेकिन हम लोग जिस समय हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट टाइम इन इस्कॉन। सबसे ज़्यादा सुरक्षित समय इस्कॉन में है कि मार्गदर्शन करने के लिए और इस्कॉन का नेतृत्व करने के लिए इतने महान महान शुद्ध भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। और गुरु महाराज के जाने के बाद भी हमने देखा कि हमें ऐसा कुछ कमी फील नहीं हुई। ऑफ कोर्स गुरु के जाने के बाद एक शिष्य को तो कमी फील होती ही है, नो डाउट, लेकिन संस्थागत रूप से देखा जाए तो ऐसा हमें कमी फील नहीं हुई। भगवान ने हमारे लिए सारे आयोजन किए। गुरु महाराज के जानते ही श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने अपनी कृपा हम पर निरंतर रूप से दी। हिज ग्रेस बासु घोष प्रभु, उन्होंने अपनी कृपा निरंतर रूप से दी। और विशेषकर श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, वो और ज़्यादा कृपालु हो गए। जितना ज़्यादा भक्तों पर कृपा करने लगे उसकी कोई तुलना नहीं है। तो हमारा अतीव सौभाग्य है कि इतने कठिन दौर से गुजरने के बाद भी इस्कॉन सुरक्षित है। सिर्फ इस्कॉन नहीं, उज्जैन कम्युनिटी ने वो फील किया गुरु महाराज के जाने के बाद। उसी प्रकार से दिल्ली कम्युनिटी में भी ये बहुत बड़ा विपदा आई जब श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज गए, लेकिन सारा इस्कॉन सपोर्ट कर रहा है। आज ही आपने वीडियो देखा होगा, श्री श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज वहाँ पर गए, कितने सारे वरिष्ठ भक्त लोग वहाँ पे गए। सो दिस इज़ द सपोर्ट जो इस्कॉन वो देता है भक्तों को। तो इसलिए मन में ऐसी आशा होना अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें जिस समय लाए हैं वो हमारे लिए बेस्ट टाइम है। जिस समय हम उपस्थित हुए हैं, जिस समय इस्कॉन से जुड़े हैं, दिस इज़ बेस्ट टाइम ऑफ अवर्स। और इसी समय हमें रह करके बड़े उत्साह से भक्ति करना चाहिए। श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्टार्टिंग में जब इस्कॉन में आए थे तो उनके बारे में बहुत कुछ सुना था, और एक इमेज मन में ऐसी डेवलप हुई थी कि ही इज़ अनअप्रोचेबल, बहुत हाई क्लास डिवोटी हैं, डेफिनेटली हैं भी सही। और इतने बिजी हैं महाराज, इतनी जगह ट्रैवल करते हैं, इतनी जगह 30 जगह GBC हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, इतने सारे शिष्य हैं, अलग अलग जगह, इतनी ग्लोरी सुनी तो समझ में आई इज़ अनअप्रोचेबल। कभी कभार दर्शन हो जाएं, कहीं मायापुर में फेस्टिवल में जाएं या इधर, तो ये इतना ही काफ़ी है, दूर से दंडवत प्रणाम कर देंगे। लेकिन गुरु महाराज की असीम कृपा थी कि कई बार उनसे मिलने का मौका मिला। स्पेशली गुरु महाराज के जाने के बाद कई दफ़ा उनसे नज़दीक से बातचीत हुई, और जब भी महाराज से मिले तो बहुत सारे मैटर्स पे पूछते थे। उनकी एक विशेष गुण है कि जब वो ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, हर बारीक चीज़ पूछते हैं। फाइनेंशियली उज्जैन में कैसा चल रहा है, भक्त लोग कैसे हैं, कम्युनिटी कितनी बड़ी है, लोकल फंड रेजिंग कितनी हो रही है, गोविंदास का क्या हुआ, लीगल मैटर का क्या हुआ, भक्ति प्रेम महाराज कब गुरु बन रहे हैं। तो हर छोटी छोटी चीज़ डिटेल में पूछते हैं। दैट शोज द कंसर्न। कुछ लीडर ऐसा नहीं ठीक है आप आए सब ठीक है ना, आशीर्वाद दिया और चले गए, ऐसा नहीं। बहुत बारीकी में हर जितनी बार मिले छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन कि आप फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं, लोकल फंड्स कितने आ रहे हैं, ये तो हर बार पूछा है, जितनी बार मैं मिला हूँ हर बार पूछा है फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं, लोकल फंड्स कितने आ रहे हैं। और इस्कॉन उज्जैन का जो लीगल मैटर है उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग बहुत सालों से परेशान थे। आप सब जानते हैं, मेरे आने के पहले वो लीगल मैटर आ गया था। 2012 से ही कुछ ना कुछ इश्यूज आने लगे थे, तो कंटिन्यूसली हम प्रयास कर रहे थे। लेकिन श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो मैटर बहुत स्मूथली सॉल्व होने लगा। उन्होंने अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल शिष्यों को इन्वॉल्व किया, जैसे युधिष्ठिर गोविंद प्रभु, व्रजेंद्र नंदन प्रभु। स्पेशली युधिष्ठिर गोविंद प्रभु वॉज वेरी हेल्पफुल, उनके बहुत अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं।
और फिर समय जब मिला, जब मोहन भागवत जी आए तो महाराज खुद आए। हमने उनको इनवाइट किया, ऐसे इनवाइट तो बहुत बार किया था लेकिन महाराज कभी आए नहीं कि ही सो बिजी। लेकिन जब मोहन भागवत का नाम सुना तो सोचा कि अब तो जाना पड़ेगा, इससे बेटर, इससे सुनहरा अवसर और कुछ नहीं मिलेगा। उनके साथ मोहन भागवत जी उनको जानते भी हैं, इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। तो फिर महाराज आए, तो वही गुरु महाराज के जाने के बाद हमारे लिए एकमात्र अवसर था जब महाराज 3 दिन के लिए यहाँ पर थे। सभी भक्तों को सेवा करने का मौका मिला और इसी रूम में गुरु महाराज के ऑफिस में हमारी मीटिंग हुई थी। मोहन भागवत जी बैठे थे सेंट्रल सोफा पे, उनके जस्ट पास में श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज बैठे थे। गोपाल कृष्ण महाराज के पास में श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बैठे थे। फिर हम 2-3 लोग बैठे थे और इधर हमने एकदम ऑडियंस की तरह 14-15 चेयर लगा दी थी। तो वहाँ पे मोहन भागवत की कुछ एक्वेंटेंसेस जो उनके साथ में आए थे वो लोग बैठे थे और केशव मुरारी प्रभु ये लोग। तो वो समय था खरगोन टेम्पल के इनॉग्रेशन का। 2 दिन पहले खरगोन टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था। तो इफ आई रिमेंबर 18 तारीख को खरगोन टेम्पल का इनॉग्रेशन था और 21 तारीख को मीटिंग थी, 21 फरवरी को। सो खरगोन टेम्पल इनॉग्रेट करके ही नेक्स्ट डे या 19 तारीख को इनॉग्रेशन था और नेक्स्ट डे महाराज यहाँ पे आ गए थे। तो केशव मुरारी प्रभु इतने उत्साहित भक्त हैं, जब उन्होंने सुना मोहन भागवत आ रहे हैं तो हमको पता नहीं था उनको बुलाया, हमने बुलाया नहीं था उनको, वो खुद ही आ गए। क्यों? बिकॉज उन्होंने भी सोचा कि मेरी तरफ से मैं कुछ सेवा दे सकता हूँ इस बात में, क्योंकि वो 15 साल आरएसएस में थे। तो आरएसएस की नस नस वो जानते हैं आरएसएस कैसे काम करता है। तो वो वहाँ पे सामने आकर के बैठ गए। हमको किसी को पता नहीं, वॉज अनइनवाइटेड, बट रोहिणी टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं तो इज़ मोस्ट वेलकम। सो वो लोग आए थे और गोपाल कृष्ण महाराज ने पहले हमको तैयारी करने का बोल दिया था। इस्कॉन के जितने अचीवमेंट्स हैं उन सारे प्रिंट आउट निकाल लो। हमारी बड़ी भगवद गीता इनॉग्रेट हुई है, मोदी जी ने इनॉग्रेट करी है, वो प्रिंट आउट निकाल लो। भगवद गीता कितनी लैंग्वेजेस में हमने बांटी है, छपी है, वो प्रिंट आउट निकाल लो। स्पेशली उर्दू वाली भगवद गीता का जरूर सामने रखना कि हम कैसे मुसलमान देशों में प्रचार कर रहे हैं। तो उनको पता है इस प्रकार के लोगों को क्या क्या चीज़ें बोलना है, कैसे अट्रैक्ट करना है। तो सारी हमने तैयारियां करके रखी थी, एक लेटर बना के रखा था और सो मैनी थिंग्स। फिर हमने महाराज के हाथ में दिया। जब मीटिंग चालू हुई तो महाराज उनको बता रहे थे एक एक करके, एंड मोहन भागवत वॉज गेटिंग वेरी इम्प्रेस्ड। फिर इस मंदिर के लीगल मैटर की बातचीत आई तो राघव पंडित प्रभु मैंने बताया, समराइज़ किया क्या चल रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर केशव मुरारी प्रभु ने बोलना चालू किया। केशव मुरारी प्रभु इतना अच्छा बोले, ही स्पोक फॉर, उन्होंने लगभग 12-13 मिनट बोला। पहले आरएसएस को उन्होंने ग्लोरीफाई किया, फिर इस्कॉन को उन्होंने ग्लोरीफाई किया। जैसे हमने सुना है ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, पहले ब्राह्मण को ग्लोरीफाई किया उसके बाद वैष्णव को ग्लोरीफाई किया। तो केशव मुरारी प्रभु इतने एक्सपर्ट हैं, पहले उन्होंने आरएसएस को ग्लोरीफाई किया 7-8 मिनट। तो इस्कॉन के भक्त से, सैफरॉन वाले डिवोटी से आरएसएस से ग्लोरिफिकेशन सुन करके तो सब आरएसएस वाले इतने खुश हो गए, इसकी हद नहीं, एक एक डिटेल्स बता के। और उसके बाद उन्होंने इस्कॉन की कॉन्ट्रीब्यूशंस बताना चालू किए कि इस्कॉन किस प्रकार से समाज में अपनी योगदान दे रहा है, अलग अलग जगह मुसलमान देशों में, और लोगों को जागरूक करने में, जो चीज़ों से आरएसएस वाले रिलेट कर सकते हैं। राइट, इट वॉज सच एन इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन कि हम लोग खुद हैरान हो गए थे कि इतनी डिटेल्स कैसे जानते हैं। और मोहन भागवत जी फिर उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने लगे 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने उनसे पूछे, उन्होंने बहुत एक्सपर्टली आंसर किए। तो इतना अच्छा इंप्रेशन सेट हो गया था कि उन्होंने इमीडिएटली बोला ठीक है, आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा। और सभी भक्तों से मिले, आधा पौन घंटा मीटिंग लगभग चली थी, गिफ्ट्स वगैरह हमने दिए, प्रसाद सामने था। सो जो हम इतने सालों से 2012 से लेकर के हम परेशान हो रहे थे 2022 तक, वो काम नहीं हुआ था 10 साल में। मोहन भागवत जी के आने के बाद 3 महीने में हमारा पूरा काम खत्म हो गया था। 3 महीने में फाइनली लीज डीड हमारी रजिस्टर्ड होकर के हाथ में आ गई थी। सो इट्स वन ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। और इस्कॉन रीजन का जो काम था शायद भक्तों को समझ में नहीं आता है, बट एक्चुअली बहुत कठिन था। कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के आना बहुत ज़्यादा कठिन है। कोई लीगल मैटर ऐसा नहीं कि हम वकील के थ्रू सॉल्व कर दें या किसी दूसरे ऑफिसर को बोल करके हो जाए। आपको सीएम को ही इन्फ्लुएंस करना है, सीएम के सारे कैबिनेट को इन्फ्लुएंस करना है, तब जाके वो काम होगा। तो बहुत लोगों को तो हमने प्रयास किया, बहुत लोग हमारे फेवर में आ गए थे लेकिन फिर भी सब लोग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन मोहन भागवत जी का एक फ़ोन गया तो सबको काम करना ही पड़ेगा।
सो जस्ट उनका इम्प्रेशन काफ़ी था। तो गोपाल कृष्ण महाराज के इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, आप सोचिए कि जिस काम के लिए हम 10 साल परेशान हो रहे थे, उन्होंने एक मीटिंग में उसको ऐसे सॉल्व कर दिया और 3 महीने में इतना मैटर पूरा ख़त्म ही हो गया। वहाँ से कैबिनेट मीटिंग में हमारे पास ऑर्डर आ गया, हमने पेमेंट किया, उसके बाद लीज डेट हो गई, एग्जीक्यूट भी होगी, रजिस्टर्ड भी हो गई। फिर हमने मौका नहीं छोड़ा, उसके अगले साल ही फ्री होल्ड भी करवा लिया। अब सरकार से हाथ जोड़े भाई अब कभी इनके लफड़े में नहीं आना जान बची तो लाखों पाए तो उसको फ्री होल्ड करवा लिया। बट इट वॉज सो इम्प्रेसिव। आई वाज थिंकिंग कि अगर मोहन भागवत नहीं आते, वो भी एक भगवान का दिव्य आयोजन था, उनका आना, और श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आना, उनका जिस प्रकार से मीटिंग को हैंडल करना, इट वॉज सो इम्प्रेसिव। इसलिए हम देखते हैं कि इतना प्रचार कैसे हो रहा है। एक छोटा सा मंदिर है, इस्कॉन से ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत सारे हैं, लेकिन आप दिल्ली में देखिए अभी 17 मंदिर वहाँ पर हैं, राइट। अगले साल कुरुक्षेत्र मंदिर इनॉग्रेट होने वाला है। अभी रिसेंटली खारगर मंदिर का जो दिखा रहे थे वो भी इनॉग्रेट हो गया है। तो महाराज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस है। राधे श्याम प्रभु बताते हैं कि वो पुणे में बड़ा मंदिर नहीं लाना चाहते थे, वो छोटा मंदिर ही लाना चाहते थे, क्योंकि छोटे मंदिर से प्रचार ज़्यादा होता है, बड़े मंदिर से फैसिलिटीज़ में भक्त लोग उलझ जाते हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज ने इतना फोर्स किया, बोले नहीं, इतना सारा कांग्रेगेशन, इतना प्रचार है, तुम इतना छोटा सा मंदिर का प्लान कर रहे हो, इट डजेंट सूट इस्कॉन स्टैंडर्ड। प्रभुपाद का स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता, आपको बड़ा मंदिर प्लान करना चाहिए। तब जाके वो इतना बड़ा मंदिर प्लान हुआ था। तो उनका विजन था, प्रभुपाद के 2 आदेश थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्पल ओपनिंग। दोनों आदेशों को उन्होंने पूरा आत्मसात किया, और इन दोनों आदेशों में पूरे विश्व में श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रचारक रहे। हरि बोल। तो उनकी दक्षता भी है, साथ में श्रील प्रभुपाद के प्रति उनकी शरणागति भी है, और एक विशेष गुण उनमें है, क्योंकि कोई भी कार्य अकेले नहीं होता है, उसके लिए टीम लगती है। और आप श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्यों को देखेंगे, उनके शिष्य लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लाना, भक्त बनाना इतना आसान नहीं है। आप हाथ से गिनिए, विवेक बिंद्रा, राइट, अमोघ लीला प्रभु, केशव मुरारी प्रभु का मैंने बोला, रामभद्र प्रभु, माधवास का ग्रुप, युधिष्ठिर गोविंद प्रभु, अमेजिंग टैलेंट। और कौन कौन है? मोहन रूप प्रभु और सुंदर गोपाल प्रभु। सुंदर गोपाल प्रभु ने प्रचार में भी राधे श्याम प्रभु भी पीछे छोड़ दिया, इतना प्रचार उनका है, जबरदस्त प्रचार है। सो आप बोलते जाइए तो आप देखेंगे कम्युनिटी में कितने सुपरस्टार भक्त लोग भरे हुए, कितने एक्सपर्ट डिवोटीज, और सब कितने शरणागत हैं, एक से बढ़कर एक। ऐसे लोगों को भक्त बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। शुद्धता तो चाहिए सही, साथ में साथ भक्तों को डील करने की वो क्षमता भी चाहिए। वो गोपाल कृष्ण महाराज, मैं उसका छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इंदौर में एक भक्त रहते हैं, आप लोग उनको नहीं जानते हैं, वो मुझसे कनेक्टेड हैं, आईडीसी में मुझसे कनेक्ट हुए थे 2-3 साल पहले। बहुत ही सरल भक्त हैं, और गोपाल कृष्ण महाराज उनको व्यक्तिगत समय देते थे। मैं सोचता था इनको क्यों समय देते हैं, बैठते थे 15-20 मिनट, आधा घंटा बात करते थे। क्या बातें करते हैं, क्या समय देते हैं, पता नहीं। वो इतना समय महाराज के पास है कैसे इतने बिजी हैं, इतने हेल्थ इश्यूज हैं, इतने सारे मैनेजमेंट के अफेयर्स हैं संभालने के लिए, लेकिन एक नए भक्त के साथ बैठे हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, उनके परिवार को जानते हैं, सबके बारे में पूछते हैं। और वो इंदौर में रहते हैं, उज्जैन में आते हैं, हम लोग उनको अच्छे से नहीं जानते। सो ये बताता है कि भले ही वो कितने बड़े लीडर हैं, लेकिन वो उस स्थिति पर पहुँचे बिकॉज हर एक भक्त का वो एक पिता की तरह ध्यान रखते हैं। जैसे श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज का हम वो गुण देखते हैं, तो वही गुण उनमें रिफ्लेक्ट होता है। हर एक व्यक्ति से उनका पर्सनल कनेक्शन है। मैं जितनी बार गया, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ, कभी मना नहीं किया। जब भी भक्त लोग हाँ चलिए लेके चलते हैं, सीधा महाराज के रूम के अंदर सोफा के पास में जाके बिठा देते थे सो कभी ना नहीं किया। तो ही वैल्यूज डिवोटीज, जितने भक्त लोग हैं, छोटा है चाहे बड़ा है, शिक्षित है चाहे अशिक्षित है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उन्होंने कभी देखा नहीं। सबको बराबर उन्होंने समय दिया, सबको बराबर प्रेम दिया, सबका ध्यान रखा। दिस मेक्स अ डिवोटी ग्रेट, राइट। तो जब वो भक्त इतना कनेक्टेड फील कर रहा है, वो कितने दिन गोपाल कृष्ण महाराज गए, कितने दिन वो रोया बता नहीं सकते, कितने दिन कितनी रातें वो रोया बता नहीं सकते। जस्ट अ न्यू डिवोटी, मतलब मूवमेंट में उसको 2 या 3 साल ही हुए, दीक्षा भी नहीं हुई उसकी अभी, लेकिन इतना डीप कनेक्शन महाराज से इस्टेब्लिश हो गया
कि महाराज के जाने के बाद अभी तक मेरे पास मैसेज आ रहा है, प्रभु जी रोना आता है, कभी कभी आके रो भी देता है। सो ऐसे कितने सारे भक्त लोग हैं। तो महाराज जब गए थे तो मैंने पूछा था एक भक्त से कि आप कितने शिष्य हैं महाराज के, तो उन्होंने बताया 35,000, राइट। उनके शिष्य से पूछा था मैंने। फिर बाद में जब फिगर्स आया तो पता पड़ा नहीं 51,000 51,000 शिष्य महाराज के। बट हमको जनरली फिगर्स पता नहीं चलते हैं। वी नो ओनली वन डिवोटी हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, जिनके 60,000 शिष्य हैं। बट गोपाल कृष्ण महाराज के 51,000 शिष्य हैं। फैक्ट्स कई बार इतने पता नहीं चलते हैं। तो इतने सारे शिष्य और मैक्सिमम लोग पर्सनली टच में, जहाँ जहाँ जाते हैं पर्सनली टच में। और महाराज एक्सपर्ट हैं, अलग अलग देश में जाके अलग अलग भाषाएं बोलने में भी, रशियन में भी बात कर लेते हैं, फ्रेंच में भी बात कर लेते हैं, इंग्लिश हिंदी तो बड़े एक्सपर्ट हैं, पंजाबी में भी बात कर लेते हैं। सो दैट इज एक्सपर्टनेस। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे महाराज के फंक्शन में। हाउ मच टाइम डू आई हैव? फिनिश 2-3 मिनट्स। तो उज्जैन के ऊपर महाराज के बहुत विशेष योगदान है, बहुत सारे उपकार हैं। उज्जैन को जब गुरु महाराज के जाने के बाद गोपाल कृष्ण महाराज बहुत कंसर्न थे किस प्रकार उज्जैन ऊपर आए, हर एस्पेक्ट में ऊपर आए। तो श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को गुरु बनाने के लिए भी श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का बहुत बड़ा हाथ था। उनका, श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज का, बहुत सारे वरिष्ठ भक्तों का बार बार महाराज को प्रेशराइज करते थे, गुरु के लिए अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो। महाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने आदेश दे दे के, फोर्स करवा के महाराज को करवाया। तो हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है ये। साथ ही गुरु महाराज के शिष्यों को भी संन्यास लेने के लिए गुरु महाराज एनकरेज करते थे। गोपेंद्र प्रभु जो अभी श्रीमद भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज, उन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज से संन्यास लिया। प्रेम भक्ति प्रभु ने भी उनसे ही अप्लाई किया था। तो बहुत सारे भक्तों को संन्यास के लिए, इवन अनिरुद्ध प्रभु भी उनसे अप्लाई करने का विचार कर रहे थे, उनको संन्यास के लिए आगे बढ़ाया। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु स्पेशली हम मैनेजमेंट में जो हैं, तो अलग अलग उनके शिष्य लोग प्रयास करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से उज्जैन के भक्तों को आगे बढ़ाएं। ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु को संन्यास मिनिस्ट्री में लेकर के आए। अभी वो न्यू ब्यूरो मेंबर्स अपॉइंटमेंट कमेटी में भी थे, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण उन्होंने छोड़ दिया। मुझे बहुत सारी कमेटी में इन्वॉल्व करने लगी, CSR कमेटी, ट्रेनिंग्स कमेटी, राम मंदिर कमेटी, कुंभ मेला कमेटी। अभी रिसेंटली भी कमेटी में इन्वॉल्व कर रहे थे, मैंने मना कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं संभाल पाऊँगा, राइट। और उनके आशीर्वाद से ही इस्कॉन उज्जैन जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बिग टेम्पल्स कैटेगरी में 3rd आया था रिसेंटली, NIDC में, पूरे ICC में नहीं, NIDC में। और बहुत सारे उनके जो वरिष्ठ शिष्य हैं, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, मोहन रूपा प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, ऋषि कुमार प्रभु, ये लोग उज्जैन फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। अभी फिर अमोघ लीला प्रभु आने वाले हैं 16 तारीख को। बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं क्योंकि व्यक्तिगत महाराज का आदेश है कि उज्जैन भक्तों का ध्यान रखना है। उसी प्रकार से श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज, उन्होंने भी आदेश दिया है उज्जैन भक्तों को स्पेशली ध्यान रखना है। तो वो भी महाराज पर्सनली खुद आते हैं इतनी बार। इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंट विजिटिंग सन्यासीज। उनके भक्त लोग भी आते हैं, हम लोग भी यहाँ से वहाँ जाते हैं, महाराज पर्सनली बुलाते हैं। आज व्यास पूजा पे महाराज भी जाने वाले थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए नहीं जा पाए, अदरवाइज ही मेक्स इट श्योर। तो उज्जैन और दिल्ली के भक्तों का जो कॉम्बिनेशन है, धीरे धीरे करके उनका जो कॉपरेशन है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, राइट। इसलिए आज के इस विशेष दिन हम महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर कृपा बना के रखें, जिससे हम उनके पदचिन्हों का पालन कर पाएँ, उनके आदेशों का पालन कर पाएँ, हमारे गुरु महाराज के निर्देशों का पालन कर पाएँ, और हमसे जो भी अपराध हुए हैं उनके चरणों में हम क्षमा चाहते हैं। परम पूज्य श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाश भितरीय च प्रचारम कृतबन साधु भागवत पदये नमः। Srila Gurudev, please accept my most humble obeisances at your divine lotus feet. On this special occasion, I am praying at your lotus feet to become a sincere and surrendered servant at your divine lotus feet. Srila Guru Maharaj, after your departure, I became careless and insincere. I don't know
how I became so polluted by Maya. Like Arjuna, like Arjuna was a great warrior, but after the departure of Krishna, when he was returning back from Dwarka, he simply defeated by some coward man. I know Guru's Vapu and Vani is same powerful. Due to my Kanishta mentality, I am thinking that my Gurudev passed away. Gurudev, your love to everyone is unique. I saw when you departed from this mortal world, everyone is crying and everyone is feeling very much sorrow. His Grace Mohan Rup Prabhu was telling that when your transcendental body brought to Delhi, in whole night more than 1 lakh devotees took darshan, and I have seen more than 50,000 devotees there in Vrindavan in the last rite of your transcendental body. Every temple is missing your presence. Everyone is like orphan now. Prabhupada was the chairman of ISKCON Bureau at the time when he was present. Your surrender for Srila Prabhupada is so unique. You are always very much anxious that devotees should always stay happy. When you had come to ISKCON Ujjain, Your Holiness gave Bhagavatam class, Kirtan, meetings and department head meetings. By your mercy, we got our land back. Your meeting with devotees gave them joy and happiness. I got a wonderful opportunity to serve you for 3 days. You are so loyal to your schedule on every morning Mangalarti. His Grace Damodar Gaur Hari Prabhu told me that to come to 502 Nityananda Bhavan at 3:45 am to bring you to temple. I went there and I found you were ready, but somehow there is very few minutes left for Mangalarti. His Grace Damodar Gaur Hari Prabhu told that you please go with Maharaj. I will go later. I came with you from 202 Nityananda Bhavan to temple. When you reached near Brahmachari Ashram, you asked me, Prabhu, if I will be 1 minute late, then I will not go to the altar. Same thing happened. Conch shell blown, and when His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj requested you to go to altar, you denied. After that, you did Narsingh Aarti. I have seen that day your loyalty for Lord. When you asked me, Prabhu, I became ashamed. You are my master, but to teach me, you bestow your causeless mercy upon me. Guru Maharaj, I don't want to be a pretended disciple. You have dedicated your life so strictly and sincerely for Srila Prabhupada mission. The mission Prabhupada had given you, you have completed that mission before your departure. When Tejas Prabhu was the president of Delhi temple, Prabhupada used to often said him that Delhi is main city in whole Asia. We should build at least 8 temples here. Then Prabhupada increased his number to 18. Your Holiness completed that task also by establishing Rohini Temple. Rohini Temple is the last temple you have accomplished in Delhi NCR. Srila Gurudev, I am remembering your lecture. When you were giving lecture, you often stress on these 2 points, that regularly study Srila Prabhupada books and regularly do attentive chanting. I am very weak on these 2 aspects. Also, I am very weak in sadhana, dealings, preaching and chanting the holy name. After my initiation, I am not very seriously practicing bhakti life. After many devotees association, after all facilities, my mind is not fixed in a devotional service in Krishna. After doing offenses, no repentance in the heart. Again and again doing offenses. Guru Maharaj, please bless me to follow your instructions as it is, and follow ISKCON's rules very strictly, as considering the ISKCON is Srila Prabhupada body. In the last year, I have not achieved anything to show, but I am promising this year I will really do something good for you. His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj की जय. हरे कृष्ण. तो एक्चुअली 2-3 चीज़ें जो मेरे को याद आ रही है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में, वो मैं बताने का कोशिश करूँगा.
तो महाराज जब आए थे यहाँ पे 3 दिन के लिए, तो मैंने भक्तों से सुना, तो हर रोज महाराज को मसाज देने के लिए भक्त लोग जाते थे, बहुत सारे भक्त जाते थे। तो लगभग 4-5 भक्त जाते थे मसाज देने के लिए। कोई हाथ को मसाज करता था, कोई पैर को करता था, कोई सर दबाता था। तो मैंने पर जिंदगी में कभी देखा नहीं ऐसे कि इतने सारे भक्त लोग जाके मसाज कर रहे हैं। तो भक्त बता रहे थे कि जब वो मसाज करते थे तो महाराज लेटे रहते थे और बाकी भक्त लोग मसाज करते थे। तो हमारे जो मनोरम चैतन्य प्रभु है वो थोड़ा पीठ दबा रहे थे महाराज का, तो थोड़ा जोर से दबा रहे थे। तो महाराज उनको बोलते हैं, प्लीज डोंट ब्रेक माई बोन्स। इस प्रकार से। तो दक्ष शंकरचंद प्रभु उनको वो बता रहे थे कि किस प्रकार से वो महाराज के पैर को मसाज कर रहे थे। और महाराज मतलब इतने मर्सीफुल थे कि इतने सारे भक्त हैं और मसाज कर रहे हैं और महाराज आराम भी कर रहे हैं। मतलब ये तो कृपा ही है एक्चुअली। तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। दूसरा, महाराज जब लास्ट दिन जा रहे थे तो मैं ऊपर गया और बुक पे साइन करानी थी मुझे, और मैं लास्ट अकेला ही रह गया था। मेरे को लास्ट में याद आया कि मेरे को साइन लेनी चाहिए, तो मैं गया, मुझे लगा नहीं मिलेगी साइन। तो अंदर गया तो महाराज निकल ही रहे थे, तो मैं बुक आगे कर दिया ऐसे। तो फिर भी महाराज ने देखा, मुझे पूछा, नाम भी पूछा और साइन भी किया और नाम भी लिखा। और जब महाराज नीचे आए तो बहुत सारे लोग खड़े थे, फिर भी महाराज ने सबके ऊपर ऐसे के गोस्वामी इस प्रकार से लिख के साइन किया। तो इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद, इतना हेक्टिक होने के बाद भी महाराज ने ऐसे नहीं कि भगा दिया किसी को, वो मैंने देखा। तो एक बार दीर्घव प्रभु बता रहे थे कि जब वो मिलने गए थे वृंदावन, तो बहुत बड़ी लाइन थी, सब लोग मिलने के लिए बैठे थे महाराज को, और महाराज अंदर के रूम में थे। तो प्रभु जाने के बाद बता रहे थे कि वो जो बाहर सेक्रेटरी रहते हैं उनको बोले कि मुझे मिलना है महाराज से, ऐसे ऐसे काम है। तो उन्होंने जाके बताया, तो प्रभु जी को पहले ही बुला लिया महाराज ने। और प्रभु जी बता रहे थे कि महाराज की हेल्थ इतनी डाउन थी कि महाराज बहुत स्लो आवाज़ में बोल रहे थे। तो प्रभु जी एकदम पास में जाके सुनने का प्रयास कर रहे थे और रिप्लाई देने का प्रयास कर रहे थे। और इतनी लंबी लाइन थी, महाराज की हेल्थ इतनी ख़राब थी, पर फिर भी महाराज चाहते थे कि इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं किस प्रकार से इनको भगा दूँ। तो ये शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे जो याद आई मैंने बोला। हरे कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इति नामिने। हरे कृष्ण। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी गुरु महाराज की जय। हालांकि उनके गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जो कुछ भक्तों के मुख से सुना है वो यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। पहला एक इंसिडेंट तो मेरे साथ ही हुआ है कि जब मैं हमारे भतीजी की शादी में राधा पार्थ सारथी मंदिर गया था, तो वहाँ पर मैंने सोचा था महाराज के दर्शन होंगे मेरे को, लेकिन दर्शन नहीं हुए। मैंने फिर वहाँ के प्रेसिडेंट से पूछा, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ने बताया कि अभी महाराज का स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, अभी 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है। तो मन में ऐसा ही रहा। फिर मैं वहाँ पर 3 दिन रुका था, तीनों दिन मंगल आरती डेली जाता था। तो आखिरी दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो हमारे मन की इच्छा हुई थी, तो एक दिन पहले ही मैंने पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सीरियस पोजीशन में है। और मैं जब लास्ट दिन देखा तो वहाँ पर मंगल आरती कर रहा है। बड़ा ताज्जुब की बात है कि देखो विग्रह अर्चन के प्रति उनकी कितनी रुचि थी। स्वास्थ्य खराब होने के बाद, हॉस्पिटल में एडमिशन, छुट्टी होने के बाद फिर वो मंगल आरती में दूसरे दिन और स्वयं वर्शिप कर रहे हैं। तो ये बड़ा मैंने देखा था उनका विग्रह के प्रति जो रुचि थी। जैसा कि भक्त लोग बताते हैं कि भगवान अपने दूतों को भेजते हैं, तो इसी तरह से सबसे पहले जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी आई, और जन्माष्टमी के भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। पहले बलराम जी ने जन्म लिया, फिर कृष्ण ने जन्म लिया, और भगवान कृष्ण ने अपने दूत श्रील प्रभुपाद को भेजा, और उसके 2 दिन अवकाश के बाद ही स्वयं
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एकादशी की तिथि के दिन आए, जो कि सबसे शुभ तिथि रहती है। तो ऐसा लगता है कि भगवान के पार्षद जो आते हैं वो एक विशेष दिन पे आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद आए, वैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए। तो ये एक पार्षद जो रहते हैं विशेष तिथि के दिन आते हैं और हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। हमको लगता है कि वो स्वयं इस तरह से अपने उद्धार के लिए रहता है उनका, वो हम लोगों के उद्धार के लिए इस जगत में आते हैं। महाराज का हमने एक चीज़ और विशेष देखा है कि उनकी शरणागति श्रील प्रभुपाद के प्रति। श्रील प्रभुपाद के जब इस संस्था में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनके पास आए थे इस संस्था में, तो उन्होंने जब धीरे धीरे दीक्षा हो गई और आगे प्रचार करने लगे थे महाराज, तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि इस जो मेरी संस्था में लाखों करोड़ों लोग आएंगे, कई लोग भक्त बनेंगे, सब प्रचार करेंगे, लेकिन इस संस्था को संभालने का दायित्व आपका है। पूरी मेरे जाने के पश्चात संस्था को संभालने का दायित्व पूरा है। तो उस समय महाराज ने बोला था ठीक है, इस संस्था को वो संभालेंगे। उसके बाद से उन्होंने प्रण किया था कि पूरे विश्व में इस संस्था को संभालने की जवाबदारी मेरी है। ऐसा उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प करा था और उसके कारण उन्होंने सबसे पहला जो प्रयास करा था श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों वितरण करना। पूरे विश्व में अनेकों अनेक पुस्तकें, कई रिकॉर्ड बनाए उन्होंने, इतनी पुस्तकें वितरित करी। तो श्रील प्रभुपाद के मिशन को उन्होंने सबसे बड़ा ये आगे बढ़ाया। दूसरा प्रभुपाद का एक मिशन था कि वैष्णव सेवा के रूप में, कि कोई भी जैसे धनी मानी परिवार आता है तो उन्होंने कई जो लाइफ मेंबर बनाए उन्होंने। तो धनी मानी परिवार को जोड़ने का उनका मकसद था कि जैसे हम देखते हैं ना कि यदि कोई धनी परिवार जुड़ता है तो उसको देख के यदि आचति श्रेष्ठ वाला है भगवद गीता में, तो उसको देख के बाकी लोग ऑटोमेटिक जुड़ते हैं। इस तरह से उन्होंने धनी लोगों को जोड़ के और धन संचय करने का प्रयास करा, जिससे कि हम उस धन से क्या करेंगे। प्रभुपाद जी क्या करते थे, धन संचय करके पुस्तक छापते थे। तो इसी तरह से उन्होंने इसके लिए पुस्तक वितरण के लिए धन संचय करा था प्रभुपाद की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसके साथ प्रभुपाद जी जिस तरह से प्रभुपाद जी की एक उनकी शैली थी कि प्रभुपाद जी को कभी भी कोई जैसे बहुत बड़ी समस्या आ जाती थी तो वो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेते थे। प्रभुपाद जी समस्या को बहुत सहज तरीके से वार देते। तो हमने देखा है कि महाराज को भी बहुत बड़ी बड़ी समस्या आई थी, तो बोलते ये तो छोटी सी समस्या है मेरे आगे, और भी बहुत बड़ी समस्या है विश्व में, लेकिन मैं तो वो समस्या हल ही नहीं करता, मैं छोटी छोटी समस्या, जबकि वो बड़े बड़े कार्य कर देते थे। हमने देखा है हमारे जो जीबीसी में कई मतलब प्रॉब्लम्स आई तो हम केवल एक ही नाम रहता था महाराज का कि महाराज ही समस्या को हल सकते। हमारे उज्जैन का प्रॉब्लम भी महाराज ने सॉल्व करा था। इस तरह से वो बड़ी बड़ी समस्याओं को एक छोटे रूप में लेके विदाउट टेंशन हल कर देते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी शैली थी कार्य करने की। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए। तो उनका मंदिर बनाने का उद्देश्य ये था कि लोग अपनी यहाँ पर आके साधना पूरी करें और उस मंदिर में भक्त लोग जो बनेंगे वो सब लोग को प्रचार करेंगे, तो जिससे धीरे 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 भक्तों की संख्या बढ़े। तो उनका एक टारगेट था कि मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना। ये श्रील प्रभुपाद भी चाहते थे, प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए ना, तो उसी तरह से उसी शैली में उन्होंने भी मंदिर बनाना शुरू करा। अकेले दिल्ली में ही देखेंगे आप 15 मंदिर हैं उनके बनाए। तो उसका कारण ये था कि इसके माध्यम से प्रचार करना। और इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत ज़्यादा लोगों को वैष्णव भोजन कराया था, मतलब 5-5 हज़ार शायद डेली प्रतिदिन लोगों को भोजन कराते थे। इस तरह से कई तरीके से उन्होंने सहायता करी थी। इसके अलावा वो क्या है कि वैष्णव की हर समस्या को हल कर देते। एक बार की बात है, भक्त लोग ही बता रहे थे कि एक बार वो जा रहे थे गाड़ी में, तो बाद में भक्त लोग आके गाड़ी से उतरे तो काफ़ी थके हुए थे। तो वो बोल रहे, रास्ते में ही रुके और बोले कि हम लोगों को खूब भूख लगी है, महाराज से बोला। तो महाराज वहाँ पर रास्ते में रुके और एक गजक की दुकान पे रुक गए और गजक वाले के आगे महाराज ने अपना ये जो उत्तरी था ना इस तरह से फैला लिया। तो उनसे गजक वो एकदम सकपका गया और महाराज इतने बड़े महाराज और इस तरह से बोले कि आप ये मांगो मत मेरे से, पूरा ठेला आप ले लो।
पूरी गजक ले लो आप, पर मेरे से इस तरह से मत मांगो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ उनसे गजक ली, फिर गाड़ी में भगवान का विग्रह रहता था उनके, मतलब जैसे तस्वीर टाइप रहती, उनको भोग लगाया और फिर सभी भक्तों को बांट, मतलब भक्तों को कि छोटी छोटी समस्या भी हो ना तो पूरी करते थे। तो इस प्रकार उनको भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। कोई भी जैसे कोई भक्त आ जाए ऐसा नहीं देखते थे, छोटा बड़ा सभी भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। उनका साधना और सेवा के प्रति बहुत लगाव था कि वो अपनी साधना को हमेशा बहुत बल देते थे। इसके कई उदाहरण हैं कि एक बार वो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, तो भक्त लोगों ने सोचा कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे भक्त साथ में थे कि बोले ट्रेन में उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे हमें से, लेकिन उन भक्तों को बोला कि ठीक है मैं अभी जप कर लूँ। वो जप करते करते 5 घंटे उनको लगे, तो 5 घंटे तक वो जप ही करते रहे, मतलब उनकी साधना को बल दिया और बाद में जाके वहाँ पर उतर गए। तो इस तरह उनका साधना के प्रति रुचि थी। और ऐसे तरह एक बार वो दिल्ली से जयपुर गए थे, तो एक साधना और एक शास्त्रीय अध्ययन में बहुत उनका प्रतिदिन प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना ये उनका नियम था, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तो एक बार दिल्ली से वो जयपुर जा रहे थे, तो जयपुर जा रहे थे तो भक्तों के साथ ही जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर जैसे हम लोग क्या है ट्रेन में जाते हैं ना, तो अधिकतर भक्त लोग सब जाते हैं तो कोई ना कोई अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि समय पास कर लेते। उन्होंने एक पुस्तक निकाली और उसको पुस्तक को पढ़ते 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 5 घंटे हो गए पूरे उनके, वहाँ पर पहुँचे और जयपुर तक वो पूरी पुस्तक ही पढ़ते रहे। तो उनका है नहीं शास्त्र अध्ययन, सेवा है ना, और साधना की इनमें ज़्यादा थी। सेवा वो हर किसी भी प्रकार की सेवा कर लेते थे। जैसे मंदिर में कभी कुछ उनको ऐसा लगता था तो स्वयं ही उस सेवा को करने लग जाते थे। उनकी इतनी उम्र होने के पश्चात भी वो कभी वो अपने उम्र के बारे में देखते कि उनके हाथ पैर भी थोड़ा सा नहीं चल पाते थे, तो भी वो अपने हाथों से सेवा करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस तरह से उनका बहुत सारे और भी गुण हैं, उनके अनंत गुणों की खान है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हैं हम यहाँ पर। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, शील प्रभुपाद की, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। जय श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज उनका 80 व्यास पूजा महोत्सव मना रहे हैं। तो महाराज जिस तरह से प्रभु बता रहे थे किस प्रकार से शिला प्रभुपाद आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। तो उनके एक मुख्य पार्षदों में परम पूज्य महाराज भी हैं। तो मैं उनके बायोग्राफी पढ़ रहा था, उससे कुछ शेयर करूँगा किस तरह से महाराज कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करते हैं और किस तरह शिला प्रभुपाद के निर्देश को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके पूरा प्रचार करते हैं। तो शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का जन्म 1944 14 अगस्त, अभी कुछ दिन पहले डेट के अनुसार उनका जन्मदिन भी था 14 अगस्त 1944 को, अन्नदायी एकादशी के दिन। उसके बाद उनका जन्म दिल्ली में होता है और बहुत अच्छे परिवार में से थे। उनके पिताजी नेवी में कमांडर थे, तो अपनी पढ़ाई करने के लिए वो बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं और वहाँ से पढ़ाई करने के पश्चात वो उनकी जॉब लगती है पेप्सी कोला, उसमें जॉब लगती है उनके। तो उस पर बिजनेस रिसर्च करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद बोलते भी हैं उनको किस प्रकार से अभी आप कंपनी के लिए रिसर्च करते थे, अभी आप रिसर्च करो कैसे कृष्ण भावनामृत को प्रचार किया जाए। मार्केटिंग रिसर्च करते थे, तो अभी मार्केटिंग रिसर्च करो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स।
तो प्रभुपाद उनको ये विशेष लक्ष्य भी देते हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। तो 1968 में उनकी मुलाकात फर्स्ट टाइम शिला प्रभुपाद से होती है, जब शिला प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आए हुए थे। और उससे पहले भी उन्होंने 6 महीने पहले प्रभुपाद को देखा था। तो उसमें लिखते हैं, महाराज लिखते हैं, When I first met Srila Prabhupada, the motivation to surrender to God was already there in me. So 2 weeks after meeting him, I knew that Lord Krishna wanted me to surrender to Srila Prabhupada. तो इस तरह से बचपन से ही उनका नाम भी गोपाल कृष्ण था। तो जब शिला प्रभुपाद ने उनको पत्र लिखा था, तो उनको पत्र लिख के प्रभुपाद बोलते हैं कि आपका नाम गोपाल कृष्ण है, तो इसी को रहने देते हैं गोपाल कृष्ण करके। तो बचपन से ही उनका इस तरह से परिवार में जन्म हुआ था। तो 23 वर्ष की आयु थी जब वो शिला प्रभुपाद को दर्शन हुआ। 24 वर्ष की आयु में उनकी दीक्षा हुई और 25 वर्ष की आयु में दीक्षा हुई उनकी 1969 में। और 37 की उम्र में उनका संन्यास हो गया था 1981 में। 1981 37 एज के, और फिर नेक्स्ट ईयर 1982 में उनका इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर बन गया वो। तब से पूरा दीक्षा दे रहे हैं महाराज। तो महाराज का जब दीक्षा हुआ उसके पश्चात 1975 में उनको जीबीसी की जिम्मेदारी दी, इंडिया के जीबीसी, क्योंकि इंडिया बहुत ही डायनेमिक कंट्री है, बहुत वैरायटी है। और उस समय जब प्रभुपाद जी से वो मिले थे तो ही वॉज फर्स्ट इंडियन इन द मूवमेंट, पहले भारतीय थे वो, है ना। और प्रभुपाद वहाँ पे वो लिखते भी हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद का भारतीयों के प्रति एक विशेष जुड़ाव था। तो प्रभुपाद से मिलने के पश्चात जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल में 3 महीने रहे तो वो रेगुलर उनसे मिलते, उनसे बात करते। और जब प्रभुपाद वहाँ से चले गए तो हर महीने में 1-2 पत्र आते थे उनको, बड़े बड़े, है ना। और इस प्रकार से प्रभुपाद के बहुत करीब उनका संपर्क रहा। 1975 में जब उनको इंडिया का जीबीसी बनाया गया तो उससे पहले 2 जीबीसी बदले जा चुके थे। हाँ, 2 जीबीसी, उनमें तमाल कृष्ण महाराज भी थे। तो उनका परिवार, तो 1975 से महाराज अभी तक इंडिया के जीबीसी रहे, जब तक थे वो इस प्लैनेट में। तो इस प्रकार से जब वो और उन्होंने अपने नेतृत्व में बहुत प्रचार भी किया। जैसे रूस में उनको 1976 अराउंड में रूस भेजा गया, रूस का जीबीसी बनाया गया। तो रूस तो एक बहुत कठिन जगह थी उस समय, सोवियत यूनियन, वहाँ पे तो पकड़ के जेल में डाल देते, प्रताड़ना करते हैं। और ऐसे कठिन कठिन देशों के वो जीबीसी से, पाकिस्तान, कजाकिस्तान तो लेकिन फिर भी वहाँ उन्होंने प्रचार किया। हाँ, मोर देन 80 लैंग्वेजेस में जो अलग अलग पुस्तकें उनको पब्लिश किया। प्रभुपाद को जब वो हिंदी में जब उन्होंने पब्लिश की थी, बुक को ट्रांसलेट किया था, तो प्रभुपाद वॉज वेरी हैप्पी। प्रभुपाद को बहुत अच्छा प्रसन्नता हुई और प्रभुपाद ने बोला कि अब इन पुस्तकों को तुम्हें प्रचार करना है। हाँ, और महाराज लिखते भी हैं वहाँ पे कि किस तरह से प्रभुपाद मुझे बार बार पुश किया करते थे, क्या है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टोर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और सेम हम महाराज के अंदर भी देखते हैं किस प्रकार महाराज के अंदर ग्रंथ वितरण का कितना उत्साह है। दिल्ली जो टेम्पल है टॉप पे रहता है वो, मायापुर दिल्ली, हाँ, पुणे के भी महाराज ही हैं जीबीसी। तो महाराज इस प्रकार से इवन जब कोरोना टाइम था उस समय भी महाराज ट्रैवल किए, हाँ, प्रीचिंग करने के लिए, उत्साह देने के लिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उत्साह देने के लिए। तो इस तरह से महाराज का एक विशेष इंस्ट्रक्शन था शिला प्रभुपाद का उनके प्रति, ग्रंथ प्रचार करना, ग्रंथ वितरण करना। उसके बाद महाराज जब इंडिया के जीबीसी बने तो महाराज उस समय भारत आए थे, 1975 अराउंड भारत आए थे। तो उसी समय ये मूवी आई थी दम मारो दम, देवानंद वाली तो महाराज ने जाके प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद इस तरह से मूवी आई है हमारे ऊपर, दम मारो दम गाते हैं वो, हरे कृष्ण हरे राम। तो प्रभुपाद ने बोला किस तरह से उनको करने दो, हाँ, ये कुछ समय बाद दम मारो दम खत्म हो जाएगा, सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम बचेगा तो उससे ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जैसे प्रभुपाद के जितने भी हम शिष्य देखेंगे बहुत ही सिंपल उनका
क्या कहते हैं, उनका जो प्रश्नोत्तर रहते हैं बहुत सिंपल रहते हैं। तो एक बार उनके कोई शिष्य थे, जब महाराज की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो ऐसे अलग अलग भक्त आते हैं, पूछते हैं कुछ स्पेशल करना है ना। तो वो आके उनको पूछते हैं महाराज को कि महाराज चैंटिंग, कीर्तन, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। तो महाराज उनको उत्तर देते हैं जस्ट चैंट, जप करो सिर्फ। और थोड़ी देर बाद रुकने के बाद बोलते हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, जो भी आपको सेवाएं दी गई हैं उसको करो। फिर महाराज एक नोट शेयर करते हैं अपने डिसाइपल्स के लिए। वो बोलते हैं डू आई जस्ट नीड द बेस्ट डॉक्टर, क्या मुझे सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल या अच्छी दवाइयों की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए? नो, आई नीड माई डिसाइपल्स टू ग्लोरीफाई कृष्णा मोर बाय चैंटिंग देयर राउंड्स अटेंटिवली। मुझे आवश्यकता है कि जो मेरे शिष्य हैं वो ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का गुणगान करें। सो डिमॉन्स्ट्रेट टू कृष्णा दैट यू वांट टू प्लीज हिम, तो भगवान को दिखाइए कि आप वास्तव में उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। गिव मी माई मेडिसिन बाय बिकमिंग गुड डिवोटी, मेरी वास्तविक दवाई है आप एक अच्छे भक्त बने। द मेडिसिन दैट विल क्योर मी इज़ विथ ऑल ऑफ यू, जो दवाई मेरा इलाज करेगी वो आप सबके पास में है, नॉट विद डॉक्टर्स, डॉक्टरों के पास नहीं है। प्लीज़ टेक माई रिक्वेस्ट सीरियसली, कृपया करके मेरे जो प्रार्थना है उसको सीरियसली ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से महाराज का बहुत स्ट्रॉन्ग जो शेल्टर है या फेथ है होली नेम पे, भगवान के नाम पे, तो उसको वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने शिष्यों को। तो इस तरह से महाराज एक अद्वितीय उदाहरण है शिला प्रभुपाद के मिशन में। तो उनके चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस तरह से उनका आश्रय है भगवान के नाम पे, और विशेषकर भगवान के विग्रह के प्रति जो उनकी आसक्ति है, वो आसक्ति को हम भी अपने जीवन में धारण कर पाएँ, और जो उनके निर्देश हैं उनको निर्देशों का पालन करते हुए शिला प्रभुपाद के आंदोलन में सेवा करते रहें। जय परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज की, गौर प्रेमानंदे हरि। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें गुरु महाराज। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं महाराज जी का गुणगान कर सकूं, परंतु मैंने जो भी लिखा है वह भक्तों द्वारा सुना है, तो मैंने वह लिखा है। महाराज जी जब हायर स्टडी के लिए मॉन्ट्रियल और उसके बाद काम के लिए भी जब मॉन्ट्रियल गए थे, महाराज जी 6 दिन काम में व्यस्त रहा करते थे, परंतु संडे के दिन आध्यात्मिक तरह से बिताते थे। एक बार महाराज जी ने किसी से पूछा कि यहाँ कोई मंदिर है? उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ पर हिप्पी लोगों ने मंदिर खोला है। महाराज जी वहाँ गए, भगवान के दर्शन किए और भक्तों से मिले। भगवान के दर्शन करके, और जब भक्तों के दर्शन किए और भक्तों का संग मिला महाराज को, तो महाराज बहुत प्रभावित हुए। फिर महाराज जी प्रतिदिन मंदिर जाने लगे। कुछ समय बाद महाराज जी को पता चला कि शिल प्रभुपाद वहाँ आ रहे हैं। महाराज जी ने भक्तों से कहा, क्या मेरे लिए कोई सेवा है? आमतौर पर हम भक्तों से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हम लोगों की भौतिक इच्छाएं जो हैं वो पूरी हों, परंतु महाराज का ये इच्छा थी कि प्रभुपाद और भगवान के लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो महाराज को सफाई की सेवा दी। महाराज जी ने 8 घंटे तक रूम की सफाई की, कोने कोने को इतने अच्छे से साफ़ किया। जब श्रील प्रभुपाद वहाँ पर आए तो प्रभुपाद ने पूछा कि किसने इतनी अच्छी सफाई की है, तो प्रभुपाद को भक्तों ने कहा कि एक भक्त हैं, उन्होंने की है। उनसे फिर जब महाराज मिले तो महाराज से पहली बार प्रभुपाद ने वही बात जब की थी, तो भक्ति प्रचार की बात की। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज ने प्रभुपाद से जब प्रचार की बात की थी, उसी तरह
जब प्रभुपाद ने भी महाराज जी से प्रचार की बात की। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद की सेवा में दिया और उनके उपदेश पर पूर्ण जीवन प्रचार करते एवं भगवान की सेवा की। महाराज को प्रभुपाद ने भारत का पहला जीबीसी बनाया था। प्रभुपाद के कहने पर महाराज जी ने 90 से ज़्यादा भाषाओं में प्रभुपाद की पुस्तकों को उपलब्ध कराया। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि अपनी भक्ति साधना को स्ट्रॉन्ग करो, इससे आप अच्छे से प्रचार भी कर सकेंगे और आपसे भगवान और गुरुदेव प्रसन्न रहेंगे। भगवान भगवद गीता में कहते हैं निरंतर मेरा स्मरण करें। महाराज जी भगवान का हर समय स्मरण करते हैं। महाराज जी प्रचार सेवा करते हैं, आरती सेवा करते हैं और प्रभुपाद की सेवा करते हैं। इन सब में उनका निरंतर स्मरण तो होता ही है, परंतु जब महाराज आराम करते थे और उस समय महाराज को भगवान का स्मरण होता था। महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं था। महाराज जी जब स्लिप हो गए थे, फिर भी महाराज जी ने 2 घंटे तक विग्रह सेवा करी थी। महाराज जी के गुणों से हम सीख मिलती है कि हमें हर समय हर परिस्थिति में भगवान की और गुरुदेव की सेवा करते रहना चाहिए और पूर्ण जीवन प्रचार सेवा में जीवन बिताना चाहिए। रशिया और चाइना में भी मतलब बहुत जब प्रचार करते हैं वहाँ पे, तो प्रचार करना नहीं, हरि नाम लेना ही वहाँ पे अपराध माना जाता था। फिर भी रशिया और चाइना जैसे देशों में भी महाराज ने सारी मुश्किलों का सामना करते हुए प्रचार किया। श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी बताते हैं कि आखिरी समय में भी महाराज जी ने हरे कृष्णा महामंत्र का हरे कृष्णा कहा था। महाराज जी हम पर कृपा करें कि हम भक्तों के चरणों में पूर्ण समर्पण कर सकें, भगवान के चरणों में प्रभुपाद के चरणों में समर्पण करके पूर्ण समर्पण करके प्रचार अधिक से अधिक कर सकें। आपका दासदेव। हरे कृष्णा। श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रचार वितीर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत पादाय ते नमः। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि बहुत सारे सितारों के बजाय एक मून की आवश्यकता है, तो श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज इज लाइक दैट मून। और कलयुग में जो जितने भी जीव हैं उनकी एक बेसिक जो क्वालिटी है वो है मिस फॉर्च्यून, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज जैसे शुद्ध भक्त आके जीवों के मिस फॉर्च्यून को फॉर्च्यून में कन्वर्ट करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कैसे उनके प्रेजेंस से ही वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता था, चाहे कहीं पे भी हो। तो ऑलरेडी बहुत सारे भक्तों ने पास्ट टाइम्स बताए हैं, लेकिन जैसे एक ही पास्ट टाइम को भागवत में अलग अलग प्रकार से बताया गया है, अलग अलग कल्पों के हिसाब से, तो अलग अलग भक्त अलग अलग रूप से एक ही पास्ट टाइम बताते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज जी का प्राकट्य दिल्ली में ही हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कनाडा गए थे। वहाँ पर वे एक बड़ी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, पेप्सी कोला पर। उन्हें बताया भगवान के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था। कनाडा में ही वे भक्तों से मिले और एक बार उन्हें पता चला कि श्रील प्रभुपाद वहाँ आने वाले हैं। सारे भक्त श्रील प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहते थे। प्रभुपाद का कमरा साफ करने के लिए कोई भक्त नहीं था, तो भक्तों ने गोपाल कृष्ण महाराज से आग्रह किया कि वे प्रभुपाद का कमरा साफ कर दें। प्रभुपाद के आते आते काफ़ी देर हो गई, जैसे उन्होंने बताया आध घंटे हो गए, और तब तक महाराज सफाई कर चुके थे। जैसे ही प्रभुपाद कमरे में प्रवेश किए, उन्होंने कहा कि उस भक्त को बुलाओ जिसने कमरा साफ किया है। प्रभुपाद उनकी सेवा से बहुत प्रभावित थे। एक मैनेजर जो कि बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने इस प्रकार से प्रभुपाद का कमरा साफ किया जैसे कि वे अपना हृदय साफ कर रहे हों। इस प्रकार से अपने सेवा भाव के माध्यम से पहली मुलाकात में ही उन्होंने प्रभुपाद का हृदय जीत लिया था। प्रभुपाद भी सोच रहे थे कि एक और यह व्यक्ति कितना शिक्षित है और दूसरी ओर कितना विनम्र भी है। जब महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, प्रभुपाद जी ने एक बार उन्हें एक पत्र लिखा था जिसमें ऐसा लिखा हुआ था, मैं आपको एक सन्यासी के रूप में मानता हूं क्योंकि आप जो भी कमाई करते हैं सब कुछ मुझे दे देते हैं, और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आपके द्वारा दिए गए
एक एक पैसे को मैं कृष्ण सेवा में ही लगाऊंगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण महाराज के अर्थ का भी दायित्व लिया था। तो ये बहुत रेयर इवेंट है। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज बताते हैं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज जब गायत्री करते थे तो उन्हें 10 से 15 मिनट लगते थे। तो बताते वास्तव में गायत्री के बाद वो 3 बार संसार दावानल गाते थे। वे कहते थे कि हमें गुरु के यश को त्रिसंध्या 3 बार गाना चाहिए। ध्यान स्तवम तस्य यशस् त्रिसंध्यम। वैष्णव महाराज कहते हैं कि गुरु के अप्रकट होने के बाद हम लोग महीने में 1 बार मिलते हैं, परंतु गुरु महाराज दिन में 3 बार गुरु की महिमा गाते थे। निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज जीवन की हर परिस्थिति में गुरु और वैष्णवों का आश्रय लेते थे। इसलिए प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए बड़े से बड़े दायित्व को वे समर्पण के भाव से संभाल लेते थे। परम पूज्य तमाल कृष्ण गोसाई महाराज बताते हैं कि वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण कार्य में कई सारे बड़े बड़े सन्यासी एकजुट थे, परंतु निर्माण कार्य में बार बार विलंब हो रहा था, जिससे प्रभुपाद जी खुश नहीं थे। उस समय विचार करके 1975 में भारत के जीबीसी के रूप में प्रभुपाद ने गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को भेजा। तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज उस समय गृहस्थ थे, परंतु प्रभुपाद ने बाकी सन्यासियों से ज्यादा महाराज पर विश्वास किया और उन्हें भारत में बड़े बड़े दायित्व दिए। 1975 में उनके आते ही राम मंदिर रामनवमी के दिन कृष्ण बलराम का उद्घाटन हुआ और आज तक परम पूज्य महाराज भारत के स्टैंडिंग जीबीसी के रूप में कार्य करते रहे, जो कि उनके गुरु के प्रति अद्भुत समर्पण को दर्शाता है। एक बार की बात है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ठंड के समय वृंदावन गए थे। अगले दिन उन्हें दिल्ली पहुंचना था। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने उन्हें बताया कि वृंदावन में सुबह का समय 12 बजे तक अत्यंत घना कोहरा होता है और उनका अगले दिन दिल्ली जाना संभव नहीं है, परंतु महाराज के लिए दिल्ली जाना अति आवश्यक था। गोपाल कृष्ण महाराज ने पूछा कि क्या रोज यहाँ पर घना कोहरा होता है? वैष्णव महाराज बोले कि हाँ गुरु महाराज, यहाँ पे रोज ही कोहरा होता है और कल भी होगा। इस पर गोपाल कृष्ण महाराज बोले कि आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि कल भी घना कोहरा होगा? ये बोलकर महाराज विश्राम करने चले गए। अगले दिन महाराज ने कृष्ण बलराम की आरती करी और देखा कि कोहरा बिल्कुल भी नहीं था। वैष्णव महाराज चकित रह गए और वे कुछ बोले नहीं। गोपाल कृष्ण महाराज उनकी ओर देखे और हंसकर वे दिल्ली के लिए निकल गए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की प्रभुपाद जी की सेवा के प्रति निष्ठा अतुलनीय है। महाराज कहते हैं कि भक्तों को 24 घंटे सेवा करनी चाहिए और अपने उदाहरण से वे सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से हर क्षण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस्कॉन के हर एक भक्त के लिए महाराज का जीवन एक मिसाल है और उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए समर्पण का भाव विकसित करना चाहिए। 1-2 पॉइंट्स और, जैसे प्रभु जी ने बताया कि इंडिया के जीबीसी बनते ही इंडिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन में टॉप हो गया, फिर दिल्ली टॉप हो गया, फिर मायापुर के डिवोटीज ने रिक्वेस्ट करके महाराज को उधर बुलाया, फिर मायापुर टॉप हो गया और पुणे भी टॉप में ही था। मतलब इस प्रकार से जहाँ महाराज थे वो वहाँ फॉर्च्यून आता ही था। और ऐसा बताते हैं कि महाराज हर भक्त से बहुत विनम्रता से बात करते थे, यानी उनकी पोजीशन बहुत हाई थी, लेकिन फिर भी इवन कोई नया भक्ति होता था, उनको कुछ ऑर्डर करना होता था तो वो ऑर्डर नहीं करते थे, वो हम्बली रिक्वेस्ट करते थे। तो भक्त लोग बहुत चकित थे कि इस प्रकार से कैसे करते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी साधना बहुत स्ट्रांग थी, हम सब जानते हैं। एक बार उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको रेस्ट करना चाहिए, मंगल आरती करने से आपकी हेल्थ और खराब होगी। और भक्तों को पता चला तो उन्होंने बाहर से रूम लॉक कर दिया था महाराज का। तो अगले दिन महाराज नहीं बाहर निकले नहीं क्योंकि रूम लॉक था। तो भक्त लोग सोच रहे थे क्या हो रहा है अंदर। भक्तों ने दरवाज़ा खोला, देखा महाराज अंदर ही मंगल आरती कर रहे थे। तो महाराज ने बोला कि प्रभुपाद का आदेश है, इस जीवन में तो मैं नहीं रुक सकता। तो महाराज का जो लाइफ है वो एक मिसाल है एक्चुअली भक्तों के लिए। मैं तो बहुत ही निम्न कोटि का भक्त हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, भक्तों ने सुना है मैंने। मैं महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जो भी उनके शिष्य हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मैं समझ पाऊँ, उसको फॉलो कर पाऊँ और अपने जीवन में भी उतार पाऊँ। हरे कृष्णा। मेरा भक्ति जीवन का जब शुरुआत हुआ अहमदाबाद में, तो हमारा ये बहुत सौभाग्य था कि महाराज जी के दर्शन करने मिले। और वहाँ पर महाराज रेगुलर आते थे और मैक्सिमम उनके ही शिष्य हैं वहाँ पर।
तो बहुत उनका प्रोग्राम मैं अटेंड की हूँ। और स्पेशली महाराज बहुत जोर देते थे, यहाँ पर सबने वो पॉइंट किसी ने बोला नहीं है, संडे फीस्ट। संडे फीस्ट प्रभुपाद हमेशा जोड़ देते थे और उसी को महाराज भी बहुत जोड़ देते थे। तो वहाँ पर अलग अलग डिसाइपल्स, अलग अलग महाराज के शिष्य थे। तो महाराज हमेशा जोड़ देते थे कि कुछ भी हो जाए, हफ्ते में एक बार संडे को सभी को मंदिर में संध्या आरती अटेंड करना ही है। और संध्या आरती के बाद क्लास, कीर्तन और फिर प्रसाद। तो हम लोग को शाम को 6 बजे से हम लोग का प्रोग्राम शुरू होता था, तो रात को प्रसाद लेने तक 11 बजता था और फिर हम घर जाते थे। तो ये महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि वो संडे फीस्ट के माध्यम से ही हमें और ज्ञान मिला। और महाराज जब भी आते थे तो स्पेशली जनवरी से मार्च के बीच में गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी, तो महाराज जो डेटी वर्शिप करते हैं, हम जानते हैं महाराज बहुत फेमस है डेटी वर्शिप के लिए। तो उनके शिष्य लोग जैसे रोज़ तो मंदिर नहीं आ सकते थे, तो उनके घरों में गौर निताई का स्थापना करवाते थे और उनका सेवा करने के लिए ज़्यादा बताते थे। तो मैक्सिमम टाइम जनवरी से लेके मार्च के बीच में जो संडे आता था, तो कभी कभी महाराज उस समय वहाँ पर आते थे और किसी के घर में ऐसे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था और वहाँ पे 4-5 भक्तों के जो विग्रह है गौर निताई, वो एक साथ वहाँ पर रखते थे और सबका अभिषेक करते थे और वहाँ बहुत बड़े तरह से प्रोग्राम करते थे। तो अभी वृंदावन में एक प्रभु जी है, विष्णु नाम प्रभु, बहुत ऊंची पोस्ट पे है, तो उनके घर पर हम बहुत जाते थे, उनके घर पर ये प्रोग्राम काफ़ी होता था। और महाराज का एक गुण मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर भी मैंने ये सुना था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महाराज बहुत फोर्स करते थे। तो पहली बार मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो क्लास सुनी थी, जो हिज ग्रेस जशोमती नंदन प्रभु जी से, और फिर बाद में महाराज आए थे वहाँ पर और उन्होंने बहुत पुश किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मैंने खुद ने वहाँ पर देखा है कि कैसे वहाँ पर भक्त लोग जो है महाराज के कहने से बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से करते थे। तो एक बार मैं ब्रजमंडल परिक्रमा में गई थी 2011, तो वहाँ पर एक माता जी थे जो महाराज के डिसाइबल थे, तो उनके साथ परिक्रमा में हम लोग चल रहे थे और अचानक उनको पता चला कि महाराज जी आ रहे हैं वहाँ पर। तो वो बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। तो वो मुझे बोलने लगी कि मुझे थोड़ा सा छुपा लो, ऐसे महाराज के सामने मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं बोला क्यों, क्या हो गया? महाराज आए हैं तो आपके गुरु महाराज है तो सामने तो जाना ही चाहिए। तो बोले नहीं, बोले मेरी सेवा मंदिर में माला बनाने की है और मैं वो छोड़ के यहाँ पर परिक्रमा कर रही हूँ। तो बोले वो नाराज़ हो जाएंगे, और वो मुझे पहले भी बताया है कि मंदिर के भक्तों के लिए ये परिक्रमा नहीं है। ये परिक्रमा सिर्फ जो गृहस्थ है, जो सेवा नहीं कर पाते हैं मंदिर में रेगुलर, उनके लिए है। तो मैं तुरंत, मुझे इतना याद आ रहा था कि उसी समय 2011-12 में ही हमारे मंदिर में भी यही चर्चा हुई थी। हमारे बहुत सारे पुजारी जाना चाहते थे परिक्रमा करने ब्रजमंडल, और गुरु महाराज ने डांट लगा दी थी। और फिर बाद में ये नियम लागू हुआ था कि सिर्फ 15 दिन के लिए जा सकते, 1 महीने के लिए नहीं जा सकते। तो उसी समय ये भी घटना हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि देखो, जो भी प्रभुपाद जी के शिष्य है वो लोग के अंदर कितना समत्व दिखता है, एक ही गुण उनमें है। तो गुरु महाराज भी ऐसे ही हमको जाने नहीं देते थे, लेकिन फिर मैं बच गई क्योंकि मैं तो गृहस्थ में थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं था कि कोई मना करेगा। तो ऐसे ही वो माता जी महाराज जी के पास गई नहीं, सामने ही नहीं गई, दूर से ही उनको प्रणाम किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि महाराज जी के पर्सनल हाथों से मुझे गिफ्ट मिला और महाराज खुद अपनी माला दिए। तो गुरु महाराज जी के जाने के बाद माला नहीं मिलती थी, नहीं मिलती है ही, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज की कमी बहुत लगती है, हमेशा याद करते गुरु महाराज कैसे माला भी देते थे। लेकिन जब महाराज ने उस दिन खुद अपने हाथों से मुझे माला दी है, तो मुझे बहुत अंदर से महाराज के प्रति कृतज्ञ हो रहा था कि कैसे हमसे बोलते हैं कि इस्कॉन फैमिली है, गुरु महाराज जाने के बाद हमको सब संभाल रहे हैं, लेकिन वो हमारे मन की बात जानते हैं और वो उस तरह से हमें आदान प्रदान करते हैं। तो मेरा भी यही प्रार्थना है महाराज के चरणों में कि वो जिस तरह से वो मुझे आशीर्वाद दे, मैं भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं। उनके अंदर जो साधना भक्ति दृढ़ है, डेटी वर्शिप का है, तो वो मेरे अंदर मैं कर सकूं
और जीवन भर गुरु महाराज के चरणों में ही समर्पित रहूं। हरे कृष्णा। श्री गुरुपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। नमयं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामिनीति नामिने। श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी एक असाधारण गुरु हमारे इस्कॉन में रहे हैं और अभी भी उनका प्रभाव रहेंगे, क्योंकि गुरु कभी भी डिसअपियर नहीं होता है डिसाइबल से, डिसाइबल का साथ ही रहता है। उनका जो प्रभाव वर्धित रहेंगे। जो उन्होंने जिस शिक्षा उनको शिष्य और सारी भक्तों को दिया है, ये दिन दिन बढ़ते रहेंगे। आज दिल्ली में राधा पार्थसारथी मंदिर है, उनका एक बहुत बलशाली मंदिर है जो दिल्ली में बहुत प्रभावशाली मंदिर है, जो सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सब लोग आ चुके हैं ये मंदिर में। और उन्होंने सबसे कनेक्टिंग रखते थे। जो दिल्ली में इतना एक मंदिर होने से हमारी इस्कॉन के पूरी कंट्री में, इंडिया में सारी परिचित है। और सारी जो स्टेट में जो लेवल में जो बातचीत होते थे महाराज जी की कृपा से। और हमारी जो राम मंदिर की में भी महाराज ट्रस्टी बनाए रखा है, जो अयोध्या में जो राम मंदिर महाराज जी की कृपा से ट्रस्टी बनाए रखा है। तो इसलिए महाराज सारी जो कुछ बड़ा प्रचार के लिए उनका बहुत एक उत्साह, जो उत्साह का जो भक्तों को लोग को देना चाहिए, इसका उनका डिसाइबल से पता चलता है। जो उत्साह कैसे देने से भक्त लोग को और आगे बढ़ा सकता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का माध्यम, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो भक्त लोग करते हैं, तो मान लीजिए इस साल हमको 1000 बुक्स कर पाया मैंने, तो महाराज का कहना है जो आज इस बार 1000 कहा, तुम्हारा 1000 बुक पॉइंट हो है, 500 बुक पॉइंट, लेकिन इस बार मैंने अगली बार तुम्हारा 2000 होना चाहिए, डबल। तो हमेशा उनको चिंतन ऐसा होना चाहिए, मैंने जितना कर रहा है इतना से डबल कैसे करें। हाँ, मैं तो डबल, मैंने एक किया, कल 2 करने के लिए प्रयास करो। इतना महाराज हमेशा भक्त लोग को मतलब उत्साह कर दे देते थे। और उनका भक्त लोग बहुत उनसे उत्साह लेके जो प्रचार करते थे, हम लोग देखते थे उनके जो भक्त लोग लाइट या जैसे गाड़ी का जो ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा होके ग्रंथ वितरण किया है, ये भी महाराज का दिया हुआ उत्साह है। अभी देख ले के लोग जो कर रहे हैं, हम सारे दुनिया में हमारा जो भक्त लोग प्रचार करने का उत्साह गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मिलते। जो मायापुर में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ऊपर जो सब एक अंतिम दिन एक गिफ्ट वितरण किया जाता है, तो ये भी सारी ये महाराज जी की का कृपा से है। फर्स्ट एंड थर्ड 10 में होता है मंदिर हो, तो महाराज जी के उत्साह का माध्यम से। और हमें देखा है, जब हम बम्बई में रहते थे, 2000 साल में मैं बम्बई में रहा गुरु महाराज जी का एक सेवा में, तो महाराज जी जब आते थे, तो मैं महाराज जी हर रोज़ मंगल आरती, उनको खुद का आरती से हाथ से आरती करना। जब महाराज रात को बाहर से, कनाडा से, रशिया से, बहुत सारी कंट्री से बताते थे, महाराज रात को कितना बजे, 3 बजे बस जुहू में पहुँचते, 2:30 बजे 3 बजे इस तरह टाइम में पहुँचते। लेकिन उन्होंने रेस्ट लेने के लिए नाम नहीं करते थे, तुरंत आ जाते थे आरती करने के लिए। हाँ, मतलब आरती करना है तो सुनो। इसलिए महाराज ने देखा, जैसे हमारा जे स्वभाव रहते हैं, जे हम इतना दूर से ट्रैवलिंग करके आया है, मैं थक चुका हूँ, मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँगा, नहीं। उन्होंने ऐसा
चिंतन छोड़ के भगवान का सेवा के लिए आगे बढ़ जाते थे। ऐसा हमको शिक्षा मिलना चाहिए जे गुरु महाराज जी जे हमें भक्ति के लिए कैसे उत्साह होना चाहिए। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, DT वर्शिप हो और सारे जो मैनेजमेंट हो, जब मैं उन्होंने जहाँ मैं 2-4 क्लास में मैं राधा पार्थ सारथी में बैठे हैं उनका क्लास में, उनको सभी क्लास ऐसा है जो कैसे भक्तों का यूनिटी बढ़वाना है। कहा आज यह है, कल उधर जाके कैसे भक्त लोग जाके एक साथ में होके और भक्त लोगों को जोड़ना है। इसी तरह जुड़ाते सारा उनके जो लगभग 80% इंडियन हिंदी हमारा महाराज इस्कॉन में जुड़ाया है, जहाँ में उनके इसी से प्रभाव से सारा दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। ये जब पुणे मंदिर हो और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब जगह में, और जो खरगर में हमारा मंदिर बन चुका है, लेकिन इनॉग्रेशन का बाकी है। महाराज जी भी करने पाया, लेकिन ये मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे राधा पार्थसारथी जैसे ही बहुत बड़ी एरिया है खरगर मंदिर। तो ये भी महाराज जी का अवदान है। तो महाराज जी आज हमारा ये इस्कॉन में बपू रूप से नहीं है, लेकिन उनका कृपा बने रहेंगे। और उनका जो ज्वेल जो जैसा शिष्य लोग है, सब लोग बहुत ही बुद्धिमान है, जो महाराज की जी का जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा के तेरह के जाएंगे। इस तरह जैसे श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यम यह प्रकाशाय व्यतिरे च प्रचार कृतवान साधु भागवत पादाय ते नमः। तो महाराज, जैसे हम लोग बता रहे थे कि महाराज का पर्सनल एसोसिएशन, हम लोग पहले सोचते थे कि महाराज का एसोसिएशन लेना मतलब बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि महाराज इतने बिजी है, सबके शेड्यूल में है। लेकिन जिस प्रकार से भक्ति प्रेम महाराज के पर्सनल सर्वेंट दामोदर गौर हरिप्रभु को एक दिन बोल रहे थे, महाराज के तिरुभाव वाले दिन, जिस प्रकार से हम लोग सोचते कि एक समय पे बलदेव विद्याभूषण की समाधि देख के हम लोग सोचते कि कितने महान व्यक्तित्व थे, हम उनका संग नहीं ले पाए। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जो है इतने महान व्यक्ति थे। हम लोग आचार्यों को देखते कि इन लोग का काश हम लोग को एसोसिएशन मिलता। हम लोग ने सिर्फ किताबों में पढ़ा उनके बारे में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। बोले इसी प्रकार से इतने महान पुरुष श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एसोसिएशन आज की जनरेशन जिसने करा है, तो वो 10 पीढ़ी बाद वो व्यक्ति बोलेगा कितने महान व्यक्ति वो लोग थे जिन्होंने गोपाल कृष्ण महाराज का एसोसिएशन करा था। ये भक्ति प्रेम महाराज ने बोला था महाराज के पर्सनल सर्वेंट को। तो महाराज का हम लोग एसोसिएशन देख सकते हैं कि हर जगह पे महाराज इतने आसानी से अवेलेबल थे। तो महाराज जी के पर्सनल सर्वेंट मेरे को बता रहे थे दामोदर प्रभु महाराज के तिरुभाव के जज्बात, कि जिस प्रकार से गुरु महाराज अमेरिका जाने के लिए एकदम जिद्दी थे कि मुझे वहाँ पे जाना ही है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा तो कौन खड़ा रहेगा। तो उसी प्रकार से महाराज जब देहरादून जाने वाले थे, महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। महाराज सोच रहे थे मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। उन्होंने एक दो वरिष्ठ भक्तों को पूछा कि मेरे को जाना चाहिए, मेरी हेल्थ खराब है। ये जो मीटिंग थी, ब्यूरो मीटिंग, वो तो जूम पे भी कर सकते थे, और बातचीत ऐसी हो गई थी कि महाराज जूम पे करेंगे। लेकिन महाराज ने फिर एंड में बोला कि अगर मैं चेयरमैन होकर अगर नहीं जाऊंगा, मैं अगर जूम पे रहूंगा तो ये मीटिंग कैसे चलेगी। मैं अगर नेतृत्व कर रहा हूँ किसी चीज़ का, तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे होगा। और महाराज को पूरे 50 साल हो चुके थे इंडिया GBC ब्यूरो के हेड, और महाराज उस मीटिंग में महाराज का एजेंडा था कि महाराज रिजाइन लेने वाले थे उस पोस्ट से। इसलिए महाराज पर्सनली बोले कि मुझे इस मीटिंग में जाना है। इसलिए महाराज जिद करके देहरादून गए थे, जो जहाँ पे महाराज के साथ महाराज का जो वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था बाथरूम में। तो महाराज को पर्सनल सर्वेंट हमेशा 24 घंटे रहते थे। हमेशा महाराज के पास कोई ना कोई भक्त रहते थे, दिन में रहते थे, रात को रहते थे। तो जब मैं पुणे में था तो पुणे में महाराज का सेवा का बहुत मौका मिलता था। तो 31 दिसंबर नाइट पे हम लोग लोकनाथ महाराज को वहाँ पे कथा होता है 7 दिन। तो 31 नाइट को लोकनाथ महाराज का 12 बजे तक कीर्तन होता है। तो हम सब लड़के लोग गए थे। तो मैं कीर्तन से रात को 1-2 बजे लौटा था।
फिर महाराज के रूम के बाहर आया था, नहा धो के मैंने बोला मंगला आरती कर लेते। तो मैं महाराज के सर्वेंट के पास गया, मैंने बोला आप लोग रेस्ट ले लो, मैं तो जगी रहा हूँ, तो महाराज की सेवा में मैं बैठता हूँ। तो ठीक है उन्होंने बोला, और मैंने रात को सेवा करी। रात को करीब 3 से 4 बजे तक सर्वेंट जो होता है महाराज के रूम में एक कोने में बैठ के जप करता है। अगर महाराज को अचानक कभी भी बाथरूम जाना है, कुछ भी जाना है, महाराज बुलाते ताकि फिर महाराज को असिस्ट करो। और महाराज एकदम धीरे से आवाज़ में बुलाते। तो मैं जप कर रहा था, पहले ही अंधेरा रहता है, रात का समय, नींद अपने आप आती है, तो हल्की हल्की झपकी मारने लग गया था। रात भर कीर्तन में डांस करके आए थे। तो 4:05 में महाराज की हल्की सी आवाज़ आई और एकदम से मेरी नींद टूटे और महाराज ने पूछा कितना समय हो गया। तो मैंने तुरंत घड़ी देख के बताया महाराज 4:05 हो गए। महाराज का उठने के साथ चेतना ये था कि मैं मंगला आरती करने के लिए लेट हो गया। आज 1 जनवरी है, मुझे राधा वृंदावन चंद्र की मंगला आरती करनी थी और मैं सेवा में लेट हो गया। और महाराज उठने के साथ ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि मैं अब कैसे करूं। तो उस टाइम पे महाराज के और सर्वेंट्स जो थे, मैंने फटाफट बुलाया, उन्होंने बोला नहीं महाराज हो जाएगा, आप अपने विग्रहों की सेवा कर लें। तो महाराज का सुबह उठने से लेके रात तक की चेतना रहता था कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। तो महाराज का मेरा फर्स्ट एसोसिएशन जो हुआ था उज्जैन में हुआ था, जब महाराज जी यहाँ पे 2017 में जीबीसी मीटिंग के लिए आए थे। तब मैं भक्ति चैतन्य महाराज की सेवा में था, तो मैं जीबीसी मीटिंग हॉल के बाहर ही बैठा रहता था जब तक मीटिंग चलती थी। और एक दिन महाराज को अचानक मीटिंग से कहीं बाहर जाना पड़ा, तो मैं हॉल के बाहर बैठा था। महाराज मुझे बोले क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ सकते हो? मैंने बोला यस महाराज जरूर। और मैंने जैसे ही हाँ बोला, महाराज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब एकदम से आप इमेजिन करो, आप नॉर्मली किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और प्राइम मिनिस्टर आपके बोलता है कि मेरे को ये हेल्प कर दो, और वो आपका हाथ पकड़ ले। मतलब एकदम डर का माहौल भी था, लेकिन स्पिरिचुअल एक्सटेसी भी थी। फिर महाराज को ऑडिटोरियम से लेके 2nd फ्लोर तक लाया। अब उतने से दौर में, उतने से वॉकिंग एरिया में महाराज ने मेरा पूरा इंटरव्यू ले लिया। तुम्हारा नाम क्या है, माता पिता क्या करते हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, आगे क्या करना है, पढ़ाई में ये क्यों करना है, MBA में स्पेशलाइजेशन कौन सा करना है तुमको। महाराज ने इतने डिटेल में बात कर ली उतने देर में। और फिर महाराज अपने रूम के बाहर आए और तब महाराज ने अपने पर्सनल सर्वेंट दामोदर गौरहरि प्रभु से मिलाया। उनको बोलते तुम तो हॉल के बाहर नहीं थे, देखो ये मेरे को लेके आए यहाँ तक छोड़ने। तब उनसे पहली बार भेंट हुई थी। फिर महाराज के साथ पर्सनल एसोसिएशन इतना ज़्यादा बढ़ता गया, मतलब असीम कृपा थी महाराज की कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेवा करता गया। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे को बचपन में लगता था मृदंग करताल सीख के तो कभी कभी लगता है दिक्कत कर दी, कोई बजाने को नहीं रहता तो हमेशा आपको ही बजाना पड़ता है। पुणे में क्या होता है, जब गुरु पूजा, जैसे किसी वरिष्ठ भक्त का क्लास है, जैसे राधानाथ महाराज का क्लास है या गोपाल कृष्ण महाराज का क्लास है, तो जब गुरु पूजा चल रही होती है ना, तभी आधे लोग जाके व्यासासन के पास बैठ जाते हैं। वो आगे का एरिया फुल हो जाता है कि और आगे बैठ नहीं सकते। तो एक दिन महाराज की क्लास थी, तो गुरु पूजा में मैं मृदंग बजा रहा था, और जब तक हम पलट के आए भागवतम क्लास की तरफ, तो आगे का एरिया पूरा मतलब अराउंड 10 मीटर तक कवर हो गया था। मतलब महाराज के पास आप बैठ ही नहीं सकते हो। तो मैं ऐसा हारमोनियम लेके खड़ा था, और महाराज के साथ में बहुत लोकेशंस पे हारमोनियम बजाया, इंदौर में बजाया, उज्जैन में बजाया, पुणे में भी महाराज मेरे को पहचान गए थे कि ये कीर्तन में बजाता था। तो महाराज दूर से इशारा करे, हरि बोल, तुम इधर आके बैठो। तो आगे कुछ सीनियर भक्त लोग बैठे थे, रेवतीपति प्रभु ये सब बैठे थे। महाराज ने सबको बोला साइड हटो, कीर्तन पार्टी को आगे बैठने दो। तो महाराज की हमेशा से कृपा किसी न किसी छोटे छोटे माध्यम से रही। एक बार महाराज से मैं पुणे में मिलने गया था, और महाराज ने मेरे को बोला तुम्हारी मम्मी वही है ना जो फर्स्ट आई। मैंने महाराज को बताया मैं उज्जैन से आया हूँ। बोले तुम्हारी मम्मी वही है ना जो उज्जैन से आए थे, उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रैंक लगा था वर्ल्ड में। मैंने बोला हाँ महाराज। तो बाद में महाराज के सर्वेंट बता रहे थे कि महाराज को जनरली थोड़ा उम्र के साथ साथ चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इतने पर्टिकुलर रहते थे कि उनके भक्त याद रहते थे किस भक्त ने कितना स्कोर किया और वो भक्त कहाँ से। तो महाराज का ये पर्सनल एसोसिएशन में पर्सनल चीज़ देखा कि महाराज ने इतना नोटिस करके बोला कि उज्जैन में तुम उनके ही बेटे हो ना, मतलब इतना महाराज याद करते थे। मैं पुणे में एक दिन महाराज के साथ बैठा था, महाराज से कुछ डिस्कशन करने गया था। दक्ष शंकरशन प्रभु ने यहाँ से नया कैलेंडर और कुछ प्रसाद भेजा था। तब महाराज कुछ बात कर रहे थे और उसके बीच में एक ब्रह्मचारी आए। तो वो ब्रह्मचारी उन्होंने नॉर्मल ब्रह्मचारी जैसा कपड़ा नहीं पहना था, वो पठानी सूट जैसा पहना था, लेकिन सैफ्रॉन था, हेड शेव्ड था। और महाराज उनको देख के इतने खुश हो गए, अरे तुम आ गए। तो ब्रह्मचारी ने सीधा दंडवत लगाया। महाराज बोले ये भक्त जो है ये कराची से आ रहा है, बोले ये कराची में ब्रह्मचारी है और ये कुछ स्पेशल गिफ्ट लाया मेरे लिए। तुरंत वो प्रभु जी ने एक गिफ्ट खोला,
वो गिफ्ट था शायद अरेबिक में कृष्णा बुक थी, तो वो एकदम नई प्रिंट होके आई थी। तो महाराज इतने खुश हो गए, वो किताब तो उर्दू अरेबिक जो भी हो वो उल्टा खुलता है, पीछे से किताब खुलती है, पीछे से उल्टा पढ़ते वो लोग। तो महाराज इतने खुश हो गए, किताब देख रहे, फिर महाराज ने सीधा उसको मंदिर भेजा, वृंदावन चंद्र को ऑफर कराया। महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति इतने उत्सुक थे कि उस भक्त को देख के खुश हो गए कि तुम लोग ने इतने जल्दी ये किताब प्रिंट कर दिया और ये अरेबिक में कृष्णा बुक आज आ गई। तो ऐसे छोटे छोटे महाराज के साथ बहुत सारे पास टाइम्स है। तो महाराज से बस हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज इतने ज़्यादा हम लोग के प्रति कृपालु है, इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी एक एक भक्त को इतना पर्सनल टाइम देते, पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते। तो हमारे बीच में ऐसे महाभागवत जो थे उनका हमें पर्सनल एसोसिएशन मिला है, इससे बढ़कर और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो एक बार लास्ट इंसिडेंट बता रहा हूँ। महाराज के शारीरिक रूप से बहुत महाराज उनको पीड़ा होती थी, लेकिन फिर भी उनके जो वैष्णव स्टैंडर्ड्स थे वो कभी महाराज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। महाराज के सर्वेंट ने उन्हें बताया था कि महाराज देखो, या तो आप भगवान के सुबह 4 बजे जाके मंगला आरती करो मंदिर में, या तो आप अपने खुद के डीटीज की सेवा करो। मतलब इन दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर लो, क्योंकि शेड्यूल के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप वॉक पे भी जाते हैं, वॉक पे जाके आप माला करते हैं, उसके बाद डिवोटीज से मिलना होता है। तो महाराज बोले जब तक मेरे में प्राण है तब तक मैं दोनों चीज़ करूँगा। तो इसलिए महाराज सबसे पहले मंगला आरती करते थे 4:30 से 5, 5:15 बजे तक। फिर उसके बाद रूम में आके महाराज मोस्टली खुद ही महाराज अपने विग्रहों की सेवा करते थे। और महाराज अपने विग्रहों की सेवा, महाराज के अराउंड एक डब्बे में 100 शालिग्राम थे, उसके अलावा टोटल महाराज के पास 250 शालिग्राम थे। 250 शालिग्राम शिला, उसके अलावा बड़े गौर निताई, बड़े नरसिंह देव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, प्रभुपाद, ऐसे सारे विग्रहों का महाराज खुद सेवा करते थे। और आराम से महाराज को लगता था 1 से 1.25 घंटा। महाराज बोले ये दोनों चीज़ मैं खुद ही करूँगा जब तक मेरे में एनर्जी रहेगी। तब एक दिन की बात है, पुणे की लास्ट ईयर जीबीसी मीटिंग के समय पुणे में मैं महाराज से जब मिलने गया था, कुछ सेवा में था, तब महाराज का एक छोटा सा वीडियो है। उसी समय राधानाथ महाराज गोपाल कृष्ण महाराज से मिलने आए थे, तो ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ वहाँ पे। महाराज का शरीर की इस आलस्ता, मतलब इस अवस्था होने के बाद भी महाराज अपने वैष्णव गुण कभी नहीं छोड़े। महाराज ऐसे महान वैष्णवों के बीच में हम लोग एसोसिएशन कर रहे हैं। और ये जो इंसिडेंट था ये मैंने लाइव देखा और ये वीडियो मैंने ही बनाया था। इतना अच्छा मोमेंट हम लोग देख नहीं सकते। और ये वीडियो है 29 अक्टूबर 2023 का। श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज का संग लास्ट टाइम जब जैसे गुरु महाराज शरीर छोड़े थे तो प्रभु का बहुत आयतु की कृपा था, लास्ट मोमेंट पे मैं जा पाया वहाँ पे। और मैं हर मोमेंट में जहाँ पे भी, वहाँ पे वृंदावन में जब मैं था, जहाँ भी गया वहाँ गुरु महाराज जो है कि मुझे हर जगह संग दिए, वहाँ स्पर्श किया गुरु महाराज को। स्पेशली जब लास्ट टाइम उज्जैन इस्कॉन मंदिर में आए थे तो उनका जो वो उद्दंड कीर्तन और कीर्तन मुझे बहुत पसंद है। तो जो वो कीर्तन जो मंदिर में बीच में जब गोराचांद प्रभु, कृष्ण कीर्तन प्रभु मृदंग के साथ सब हुजूम में जो कीर्तन हुआ, वास्तव में वो कीर्तन में कभी इतना हाई कीर्तन और इतने सिंपल आवाज में गुरु महाराज गाते थे, इतना आनंद आया उस दिन। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी वो मोमेंट पे। एक बार मैं जब मंदिर आया था, बहुत पहले जब मैं घर पे था, तो गुरु महाराज जी आए थे। तो जब वॉक करने गए थे गुरु महाराज, तो जब मैं गया था उनके साथ, तो गुरु महाराज पर्सनली इतना डिवोटी केयरिंग में रहते थे कि
मैं भाग के आया उनके पास में, तो बोले कि क्या हो गया? मैंने नहीं गुरु महाराज कुछ नहीं। तो बोले कि आपका जप हो गया? मैंने अभी नहीं, अभी थोड़ा हुआ है। तो गुरु महाराज बोलते कि जप बहुत ध्यान से करो, जप बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो दिन मुझे आज भी हमेशा याद रहता है। और चित्तारी कृष्ण प्रभु के सानिध्य में गुरु महाराज जब मंदिर आए थे तो मुझे स्पेशल ऐसे शुद्ध वैष्णव का मुझे संग मिला और उनके मसाज करने का मौका मिला। सो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और एक जब मैं उनका हमेशा लेक्चर सुनता हूँ तो एक लेक्चर में सुना तो गुरु महाराज हमेशा एक चीज़ पे बहुत बल देते थे कि इंद्र तृप्ति मत करो। बहुत फोर्सफुली गुरु महाराज ने उसको बोला कि इंद्र तृप्ति मत करो। तो मतलब मैं उसको वो पॉइंट मेरे लिए बहुत टच करता है कि इंद्र तृप्ति जितना आप जितनी मात्रा में इंद्र तृप्ति करते हो उतना ही कष्ट मिलता है। तो वो पॉइंट मुझे बहुत हिट किया। और दूसरा ये कि गुरु महाराज का जो कीर्तन जो जय राधा माधव जो जब भी स्टार्टिंग करते हैं वो इतना स्लो इतना मूवमेंट में गाते लेकिन वो इतना मधुर इतना सुंदर लगता है। मैं उसको मैक्सिमम टाइम उसको सुनता हूँ। तो गुरु महाराज की बहुत अहेतु की कृपा है। और भक्ति 400 में गुरु महाराज के बाद गुरु महाराज ने जो उज्जैन की कमान संभाली और सब उज्जैन के भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया, तो मैं गुरु महाराज के प्रति बहुत ऋणी हूँ। और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मैं उज्जैन के भक्तों के साथ हमेशा मैं विनम्र भाव से बस यहाँ पे भक्ति करता रहूँ। मैं अंदर अहंकार ना आए किसी भी चीज़ का, अदरवाइज मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगा उज्जैन में। मैं विनम्रता पूर्वक वैष्णव के संग में रह सकूँ, मैं यही प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से। और जब भी वैष्णव गण जो भी मुझे डांटे या किसी भी प्रकार से तो मैं बस उनको सहन करता रहूँ। और जैसे थिरुगौर प्रभु ने बताया था कि इस तरह जो इतनी बड़ी मूवमेंट जो ज़मीन जो पास हुई है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती, मैं बहुत गरीब घर से हूँ वैसे। बाकी जब मेहनत करता हूँ घर पे तो कोई चीज़ जब मिलती है तो उसका मज़ा अलग ही रहता है। तो गुरु महाराज ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो हमको दी, इतना भक्तों का संग दिया। और 10 साल से जो प्रभु बता रहे थे कि हम बहुत संघर्ष किए लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं हुआ, गुरु महाराज ने 3 महीने में कर दिया। तो जब कोई चीज़ मेहनत करते हैं उसके बाद में जो चीज़ हासिल होती है उसका मज़ा अलग ही रहता है। तो ऐसे गुरु महाराज ने हमको इतनी आसानी से दे दिया, तो बस वो उनकी जो कृपा है उनकी वैल्यू को मैं समझ सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं और भक्तों के संग विनम्र भाव से जो है कि मैं रह सकूं इस मंदिर में। हरे कृष्ण। धन्यवाद। परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। मुझे बोलना नहीं आता है, आप कृपा कीजिए। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामिने। हरे कृष्ण। तो मेरा बोलने का क्वालिफिकेशन तो नहीं है, पर इसके साथ में ही महाराज की कृपा के लिए मैं ड्यूटी बाउंड फील करता हूँ महाराज की कुछ क्वालिटीज़ को शेयर करने का। तो सबसे पहले हम जैसे बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमें जो मैक्सिमम महाराज लोगों का संग मिला 2017 में जीबीसी मीटिंग के दौरान मिला। तो 2017 में जब जीबीसी मीटिंग चल रही थी, हम लोग बेस में तो ऐसे 5 बजे 5:30 बजे रिपोर्ट करते थे, पर यहाँ मंदिर में आए थे 2-3 दिन के लिए तो एकदम जल्दी उठ के 4:30 पे किसी प्रकार से रिपोर्ट कर देते थे। और बड़ा उसका हमें अहंकार भी रहता था, देखिए 4:30 बजे हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। फिर देखते थे अरे कुछ लोग लेट भी आ रहे हैं, ऐसा देखते थे। और फिर ऐसे ही देखते देखते एकदम नए अभी बेस में शिफ्ट हुए थे, तो इस प्रकार से देखते देखते हम देखते थे, मैं देखता था कि जैसे महाराज आ रहे थे, कभी 4:45 या 4:50 पे भी आए। तो मैं एकदम नया भक्त था, महाराज का नाम भी अभी सुना था, तो मैं सोचता था हाँ महाराज का थोड़ा उम्र हो गया है तो इस प्रकार से थोड़ा उठने में लेट हो जाता होगा, तो इस प्रकार से लेट आ रहे हैं। पर उसके बाद भी महाराज की क्वालिटीज़ ऐसा है कि हमें टच कर जाती है। पर फिर भी मैं ये नोटिस कर पाया, ऑल्दो बहुत ही न्यू तुरंत ही अभी कनेक्शन में आए थे, नोटिस पे कर पाया कितना सिंसेरिटी से महाराज सभी जो विग्रह हैं उनको ओबेसेंसेस ऑफर करते थे। महाराज के लिए बहुत कठिन होता था झुकना, फिर भी महाराज बहुत तैयारी करते थे पूरा अच्छे से ऑफरिंग ओबेसेंसेस ऑफर करने के लिए। तो उसके साथ में ये बहुत इंस्पायरिंग रहा।
तो जीबीसी मीटिंग के दौरान खासकर मैंने ये दो महाराज के बारे में कुछ कुछ सोचा और बिल्कुल अपोजिट ही पाया। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दो महाराज के बारे में मैंने ऐसा क्यों सोचा, और उन्हीं का वो उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसे बाद में 1 साल बाद और 6 महीने बाद, तब तक मुझे पता नहीं चला। फिर जब बेस में एक डिवोटीज़ आए थे, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने गुरु वर्ग का सभी का ग्लोरिफिकेशन करें। तो एक डिवोटी आए थे, तो उन्होंने अलग अलग महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो उसी में महाराज का ग्लोरिफिकेशन करते हुए उन्होंने बोला कि महाराज कभी मंगल आरती मिस नहीं करते। और एक बार जब महाराज का ऑपरेशन हुआ हार्ट का, डॉक्टर ने बोला कि आपको सुबह जगना नहीं है, अगर ये जगेंगे तो नहीं रहेंगे। तो फिर उनके डिसाइपल्स ने बाहर से रूम लॉक कर दिया कि महाराज आ ही नहीं पाएंगे मंगल आरती में। तो महाराज ने अंदर ही उठ के मंगल आरती चालू कर दी, रूम के अंदर ही। तो फिर ये जब मैंने सुना तब मुझे समझ में आया कि महाराज का मतलब जो मैं सोचा था कितना गलत था। तो महाराज पहले अपने विग्रहों का सेवा करते हैं, वहाँ पर उनकी सेवा पूजा करने के बाद मंगल आरती में आते हैं। फिर महाराज ने विग्रह सेवा भी किया मंदिर में भी। उसके साथ में ही मैं जब प्रसादम सर्विस हो रहा था, गुरु महाराज भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, अलग अलग महाराज प्रेजेंट थे। तब फिर हमारा उस तरीके से, अभी हम लोग एकदम नए नए डिवोटी थे पर फिर भी इतना वो था, तो अलग अलग महाराज प्रसाद ले रहे थे। तो उसमें एक और महाराज थे, तो हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज। तो फिर मैं सोचा, फिर से वही चीज़ लगाया मैं सोचा हाँ महाराज कहीं, मुझे लग रहा था चाइना या नेपाल से हैं महाराज, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था, कहीं चाइना से हैं महाराज या नेपाल से हैं। फिर मैं सोचा हाँ महाराज थोड़ा बहुत जानते होंगे बॉडी सोल के बारे में। मैं सोचा कि अब महाराज तो नेपाल चाइना से हैं, तो जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं बॉडी सोल के बारे में। मैं सोचा हाँ महाराज जानते होंगे बॉडी सोल के बारे में, तो इसलिए महाराज मतलब इस प्रकार से हैं। महाराज हैं अभी पहले के टाइम से हैं, तो फिर इसलिए मतलब महाराज है प्रभुपाद जी के टाइम से। तो मैं ऐसा सोचता था। फिर मुझे बहुत बाद में चला कि हाँ महाराज इस्कॉन में कितना स्कॉलरशिप के लिए जाने जाते हैं। तो मैं 2 ही महाराज के बारे में सोचा और दोनों महाराज के बारे में मुझे ऐसा ही रिस्पॉन्स मिला। और तो ऐसा मुझे बाद में मतलब पता चला। तो इसी प्रकार से फिर महाराज से एक बार जब तिरुपति में जीबीसी मीटिंग था, तब हम लोग जैसे ही पहुँचे थे तो सबसे पहले दर्शन महाराज का हुआ। तो जैसे ही प्रणाम किया, महाराज ने बहुत अच्छा स्माइल दिया। तो एकदम हमारा दिन बन गया उस दिन कि हम लोग एकदम सही चीज़ तौर पे आए हैं। फिर जब मीटिंग के दौरान हम लोगों को फ्रूट जूस सर्व कर रहे थे, तो महाराज वहाँ पर आए, फिर हमें दिया था जूस। तो महाराज ने कुछ जूस लिया था। और फिर जब महाराज मीटिंग के बाद में जा रहे थे तो मैं एकदम आगे था, क्योंकि आगे आगे रहने का हमारा वो रहता है। और महाराज के डिसाइपल एक और थे मेरे साथ, बेंगलोर से आए थे, वो थोड़ा पीछे पीछे थे, पर फिर भी मैं आगे रहा इस प्रकार से। तो महाराज ने मुझे देखा और फिर से बहुत अच्छे से मुस्कुराए। फिर मैं थोड़ा महाराज के साथ लिफ्ट तक गया, लिफ्ट मैंने खोला तो महाराज पूछे कहाँ से। तो मैंने पूछा, मैं ऐसा हंसते हंसते बोले कहाँ से। मैंने बोला महाराज उज्जैन। तो महाराज इतना स्वीट स्माइल दी, ऐसा मतलब पूरा स्वीटनेस एक साथ आ गया। और महाराज ने वैसे स्माइल देते हुए बोला ओह उज्जैन, इस प्रकार से महाराज ने बोला बहुत स्माइल करते हुए। तो वो भी एक इम्प्रेशन रहा कि हाँ मतलब कितना स्पेशल जगह से हम लोग हैं, या महाराज कितना प्रेम करते सभी को। तो इस प्रकार से इम्प्रेशन रहा। तो उस टाइम भी हो गया है, तो इसलिए महाराज से प्रार्थना करते हैं इसी दिन कि महाराज जिस प्रकार से प्रेरणा दिए हैं और अपना जीवन श्रील प्रभुपाद जी की सेवा में समर्पित किए हैं, हम भी कुछ अंश उस रूप में सेवा कर पाएँ। और जो भी हमारे जो अनर्थ है, जो इस चीज़ों में रोकते हैं, उन पर उनसे हम पार पा पाएँ। हरे कृष्ण। श्री श्रीमान गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की।